بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور مولانا شاہ رحیم الحسینی حاضر امام. یا مولا مہربان مشکل کشا مدد فرما مدد فرما. اگر تو مست مولا ہے، اگر تو مست مولا ہے تو آجا اشک برسائیں. اگر تو مست مولا ہے، تجھے گر فکر فردا ہے، تجھے گر فکر فردا ہے تو آجا اشک برسائیں. اگر تو مست مولا ہے، اگر دل اس سے خالی ہے، اگر دل اس سے غافل ہے، صدا شیدائے باطل ہے، بہت ہی دور منزل ہے، بہت ہی دور منزل ہے تو آجا اشک برسائیں. اگر تو مست مولا ہے، دل غمگین فدا ہو جا، دل غمگین فدا ہو جا، اسی میں تو فنا ہو جا. اگر یہ کام مشکل ہو، اگر یہ کام مشکل ہو تو آجا اشک برسائیں. اگر تو مست مولا ہے، قیامت آ کے رکتی ہے، قیامت آ کے رکتی ہے، دلوں میں جب کساوت ہو. قیامت آ کے رکتی ہے، دلوں میں جب کساوت ہے، گزرنا ہو قیامت سے، گزرنا ہو قیامت سے تو آجا اشک برسائیں. اگر تو مست مولا ہے. صدائے گریہ ہو زاری، طبیب عشق سنتا ہے. صدائے گریہ ہو زاری، طبیب عشق سنتا ہے. اگر اس کو بلانا ہے، اگر اس کو بلانا ہے تو آجا اشک برسائیں. اگر تو مست مولا ہے، چہل درویش کا حلقہ، چہل درویش کا حلقہ، کہاں ہے تیری دل سوزی. اگر آنا ہے اس دل میں، اگر آنا ہے اس دل میں تو آجا اشک برسائیں. اگر تو مست مولا ہے، نصیر عشق مولانا، نصیر عشق
अजब फिरदौस आला है, बुला ले अपने हर साथी, बुला ले अपने हर साथी, के आज अश्क बरसाए, अगर तू मस्त मौला है, अगर तू मस्त मौला है, तो आज अश्क बरसाए, अगर तू मस्त मौला है। जो दोस्त उर्दू समझते हैं वो समझेंगे, लेकिन गुजराती में कुछ अल्फाज नाचिस अदा करेगी। જ્યારે આપણે ગિરિયા ઉઝારીની તસબીહ કાઢીએ છીએ યા આપણે કહીએ છીએ કે આપણે ગિરિયા ઉઝારી કરવી છે, ગિરિયા ઉઝારી વગર આંસુએ નથી થતી. ગિરિયા ઉઝારીનો મતલબ જ છે કે આપણે આંસુ ટપકાવવા જોઈએ. પણ જ્યારે દિલ સખત હોય, દિલમાં ધ્યાન ન હોય ત્યારે આંસુ નથી નીકળતા. તો દિલને બહુ નરમ કરવું પડે છે, અને એને નરમ કરવા માટે ખૂબ zikr, ઇબાદત અને એવા જ્ઞાન કલામ વાંચવા જોઈએ જેનાથી દિલ આપણું નરમ થાય. જેવી રીતે કે આ એક બહુ બ્યુટીફુલ કલામ છે કે અગર તમે મૌલાથી મોહબ્બત કરો છો, અગર તમે મસ્ત મોમિન છો, તો આવો આપણે બેસીએ અને આપણે આંસુ બહાવીએ, આપણે કાંઈ ગિરિયાઉઝારી કરીએ. અને અગર તને ફિકર છે તારા રૂહની, તો આવ આપણે કાંઈક ગિરિયાઉઝારી કરીએ. તો સવાલ પેદા થાય છે કે કેમ ગિરિયાઉઝારી? તો ગિરિયાઉઝારીથી આપણા બધા ગુનાહ માફ થાય છે. જ્યારે આપણા પીરે કીધું ને કે કપડાં ધોવે સો ક્યાં હુઆ, દિલ ધોવે સો પાવે. તો જ્યારે અગર દિલને ધોવું છે તો દિલમાં આપણું દુનિયાવી પાણી નથી પૂગતું, પણ આંખોનું પાણી પૂગે છે. તો જ્યારે આંખોથી આંસુ નીકળે છે ત્યારે દિલની પાકીઝગી થાય છે, આપણા રૂહની પાકીઝગી, સફાઈ થાય છે. તો કહે છે કે અગર તારું દિલ ગાફિલ છે અને એની યાદથી દૂર છે અને તને ખબર છે કે બહુ દૂર મંઝિલ છે, તો આવ આપણે આંસુ બહાવીએ. અગર તારો દિલ કોઈ ગમગીનીમાં છે તો ચાલ આપણે ફનાયતની ગમગીની વિશે. Sometimes we agree to disagree as well, આપણે ફનાયતની ગમગીનીને એમાં જઈએ અને આપણે એમાં ફના થાય. અને અગર આ કામ મુશ્કેલ છે, આપણે મુશ્કેલ લાગે છે ને, ઇમામમાં ફના થવું કાંઈ આસાન તો નથી, તો મુશ્કેલ લાગે છે તો આવ આપણે કાંઈક આંસુ બહાવીએ. કેમ કે ફનાયત અને નુરાનિયત જેને જોઈએ છીએ એ વગર ગિરિયાઉઝારીને નથી થતી. ત્યારે જ આપણા પીરે આપણે સવાર સાંજ ગિરિયાઉઝારીની તસબીહ કાઢવાનું કીધું અને તસબીહની આદત નાખી કે તમે ગિરિયાઉઝારીની તસબીહ કાઢો. પણ આપણે જમાતખાના અંદર બીજાઓનું આ સામે હોય તો શાયદ મુશ્કેલ થાય, પણ જ્યારે આપણે એકલા હોય યા જ્યારે આપણે ગ્રુપના અંદર આપણે એ નિયત કરીને બેઠીએ કે હવે તો ગિરિયાઉઝારી કરવી છે, તો પછી આપણે ખૂબ આંસુ બહાવવા જોઈએ, પણ અદબના સાથે, હંમેશા અદબના સાથે. કેમ કે જ્યારે આપણે એકલા હોય ને તો મોલા બાપાથી આપણે લડી લઈએ, બધું કરી લઈએ, રાઈટ. પણ જ્યારે આપણે ભેગા હોય તો બહુ અદબના સાથે આપણે જે આપણા જીભથી વર્ડ્સ નીકળે, જે બી આપણે કહેતા હોય, બહુ અદબના સાથે આપણે વાત કરતા હોઈએ. અને પછી કહે છે કે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત અહીંયા કે ક્યામત અગર તમને જોઈ છે તો ક્યામત શું છે? ઇમામના સાથે એક થવું, એ મિલન, એ સંગમ, જે વસલ આપણે કહીએ છીએ ને, અસલમાં વાસલ, જીવતા આપણે વાસલ થવું છે, તો એને ક્યામત કહેવાય છે. તો અગર તને ક્યામત જોઈએ છે અને ક્યામત છે ને આ રોકાઈ જાય છે, થાતી નથી, તો કે છે શું કામ? એટલે કે દિલના અંદર જ્યારે કસાવત હોય છે, દિલના અંદર જ્યારે ખરાબી હોય છે, દિલના અંદર જ્યારે કોઈની ગીબત, કોઈની ગિલા, કોઈની દુશ્મની, કોઈની અદેખાઈ, અહંકાર, આવી બધી બીમારી હોય દિલના અંદર, તો પછી મોલાથી મિલાપ કેવી રીતે થાય? કેમ કે જ્યાં ઘર ગંદુ છે ત્યાં ઇમામનું નૂર ન આવે, કેમ કે નૂર તો પાકોનો પાક છે, રાઈટ. તો ત્યાં એની બત્તી ન બળે, કેમ કે એના અંદર, એ ઘરના અંદર બહુ ગંદગી છે, નાપાકીઝગી છે. તો કહેશે ક્યામત નહીં આવશે. અગર તને ક્યામતથી જવું છે તો
તો આવો આપણે કંઈક આંસુ બહાવીએ. અને પછી કહે છે કે સદાય ગિરિયાઓ જારી તબીબે ઇશ્ક સુનતા હૈ. તબીબ કહેવાય છે ડૉક્ટરને. તો કહે છે કે જે ઇશ્કનો ડૉક્ટર છે, અગર આપણે એને બોલાવવું છે, અગર આપણે આપણા મોલાને, જે આપણો દિલનો ડૉક્ટર, આપણી રૂહનો ડૉક્ટર છે, એને બોલાવવું છે અને એનાથી આપણે ઇશ્ક કરવું છે, તો સાંભળ કે હંમેશા જે લોકો ગિરિયાઓઝારી કરે છે એની અરજી સાંભળે છે. તો આપણે શું કહીશું કે આપણે વિનંતી કરશું, હમણાં વિનંતી ગિરિયાઝારીની તસબીહ કાઢશું. તો એ બધા માયના એક જ છે, જબાન લેંગ્વેજ અલગ અલગ જ છે, પર વાત એક જ છે, અર્થ એનું એક જ છે. તો કહે છે કે હંમેશા જે ગિરિયાઝારી કરે છે ને એ ઇમામને જલ્દી બોલાવી શકે છે. અને અગર તને એને બોલાવવું છે તો આવ આપણે ગિરિયાવઝારી કરીએ. પછી કહે છે કે 40 દરવેશ જોઈએ, એક ગ્રુપ હોય 40 જણાનો, તો કહે છે કે તમે 40 દરવેશ છો, તો ક્યાં છો તમે અને તમારી દિલની નરમી ક્યાં છે? અગર તમે પોતાને દરવેશ કહો છો, મોમિન કહો છો, તો તમારો દિલ કેમ નરમ નથી થતા? કેમ તમારાથી ગિરિયાવઝારી નથી થતી? કહે છે અગર આવું છે આ દિલના અંદર, ક્યાં દિલના અંદર? ઇમામના દિલના અંદર, તો પછી આવો તમે ગિરિયાઝારી કરો. તો આપણે સમજવાનું છે કે જ્યારે આપણે ઇમામની કુરબતને ચાહીએ છીએ, તો ઇમામની કુરબત જ્યાં સુધી આપણા દિલ નરમ નથી થતા, અને દિલ નરમ નહીં થશે જ્યાં સુધી એના અંદર એનો ઇશ્ક નથી, એનો ઇશ્ક ત્યાં સુધી પકડ નથી પકડતો જ્યાં સુધી આપણા રૂહના અંદર ગુનાહ છે, ગંદગી છે, બીમારીઓ છે. તો બધી ચીજનો એક ઇલાજ, મોટો ઇલાજ જે છે એ ગિરિયાવઝારી છે. પછી કહે છે નસીરા ઇશ્ક મૌલાના અજબ ફિરદૌસ આલા હૈ. મારા મૌલાનો ઇશ્ક તો એટલો ઊંચો ને એટલો આલા છે કે બધા પોતાના ફ્રેન્ડ્સને બોલાવી લે, બધા ભેગા કરી લે અને ચાલ આપણે બધાએ મળીને આપણે ગિરિયાવઝારી કરીએ. તો મૌલાની એટલી રહેમત છે કે આપણે નવરોઝની તૈયારી કરી રહ્યા છીએ અને આપણો નવરોઝનું જે ઇન્ટેન્શન છે એ ગિરિયાઝારીનો છે, અને આપણે બધા સાંજના ભેગા થઈને zikr ગિરિયાઝારી કરીએ છીએ, નિંદર ઓછી કરીએ છીએ, ઇબાદત વધારે કરીએ છીએ કે જ્યારે નવરોઝમાં ઇમામ તખત ઉપર બિરાજમાન થાય તો એ આપણા માટે ઘણી બધી દુઆશીસ અને ઘણી બધી પ્રગતિ, રૂહાની નુરાની પ્રગતિ અને તરક્કી આપણને આપે. આમીન યા રબ્બલ આલમીન. શુક્રન લિલ્લાહ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. આપણે ફોર્મલી આપણી ક્લાસનો શરૂઆત કરશું. બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ. નૂર મૌલાના શાહ રહીમ અલ હુસૈની હાજરી. હસબુનલ્લાહ વ નિઅમલ વકીલ વ નિઅમલ મૌલા વ નિઅમન નસીર. હસબુનલ્લાહ વ નિઅમલ વકીલ વ નિઅમલ મૌલા વ નિઅમન નસીર. હસબુનલ્લાહ વ નિઅમલ વકીલ વ નિઅમલ મૌલા વ નિઅમન નસીર. હસબુનલ્લાહ વ નિઅમલ વકીલ વ નિઅમલ મૌલા વ નિઅમન નસીર. હસબુનલ્લાહ વ નિઅમલ વકીલ વ નિઅમલ મૌલા વ નિઅમન નસીર. હસબુનલ્લાહ વ નિઅમલ વકીલ વ નિઅમલ મૌલા વ નિઅમન નસીર. હસબુનલ્લાહ વ નિઅમલ વકીલ વ નિઅમલ મૌલા વ નિઅમન નસીર. હસબુનલ્લાહ વ નિઅમલ વકીલ વ નિઅમલ મૌલા વ નિઅમન નસીર. હસબુનલ્લાહ વ નિઅમલ વકીલ વ નિઅમલ મૌલા વ નિઅમન નસીર. હસબુનલ્લાહ વ નિઅમલ વકીલ વ નિઅમલ મૌલા વ નિઅમન નસીર. હસબુનલ્લાહ વ નિઅમલ વકીલ વ નિઅમલ મૌલા વ નિઅમન નસીર. હસબુનલ્લાહ વ નિઅમલ વકીલ વ નિઅમલ મૌલા વ નિઅમન નસીર. શુક્રન લિલ્લાહ વલ્હમ્દુલિલ્લાહ. શુક્રન લિલ્લાહ વલ્હમ્દુલિલ્લાહ.
એક વખત પછી બધાય ભાઈ બહેનોને યા અલી મદદ. અને આજે આપણે આપણું જે ચોપડી છે ડિવાઇન રિમેમ્બરન્સ આપણે એને વાંચી રહ્યા છીએ. આજે હું એ ઇંગ્લિશ અને ઉર્દુ બે ખોલેલા છે, કેમ કે જે મને ફીડબેક મળ્યું ફ્રેન્ડ્સનું કે ઉર્દુ વાંચીએ છીએ તો ઉર્દુ બી મુશ્કેલ લાગે છે. તો આ ચોપડીમાં અલામા સાહેબ પોતે કહે છે કે ઉર્દુ આસાન છે, પણ આપણે ઇંગ્લિશ બી સામે રાખીએ છીએ કે કોઈને ઇંગ્લિશ કમ્ફર્ટેબલ લાગતું હોય so they can read English as well. So we'll try to do mix and we'll keep it very simple in Urdu as well. So सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं इसको. बाब अव्वल, जिक्र के मानी व मतालिब. जिक्र के कई मानी व मतालिब हैं जिनकी यहाँ अलग अलग तौजी व तशरीह की जाती है, ताकि इससे हमारे उन भाइयों बहनों दोस्तों और अजीजों को जिक्र की गहरी हकीकतें समझने में काफी हद तक मदद मिल सके, जो इस अजीम शान पुरअसरार और मुकद्दस काम से दिलचस्पी और वाबस्तगी रखते हैं, जिनके लिए ये किताब तसनीफ की गई है. तो यहाँ पे बहुत ही खुले और बहुत ही सादा अल्फाज में ये बताया जा रहा है कि जिक्र के मानी समझने हैं. और जिक्र के मानी जो है आप देख रहे हैं कि कुछ भाई हैं, कुछ बहन हैं, कुछ दोस्त हैं और कुछ बहुत ही करीब के दोस्त हैं. जो जिक्र की बहुत ही गहराई के अंदर जो इसके माना है, जो इसकी हकीकत है, उसको समझ के उससे फायदा हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ये किताब लिखी गई है. और बहुत ही अल्फाज पे गौर करना है, क्योंकि अल्लामा साहब के अल्फाज जो है बहुत ही आला और इल्म से भरपूर. अल्लामा साहब फरमाते हैं अजीम शान पुरअसरार. अजीम शान हम सब समझते हैं कि बहुत ही अजीम, बहुत ही आलीशान बात, पुरअसरार, जिसके अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, जिसके अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं. और मुकद्दस काम से, ये बहुत मुकद्दस काम है, जिक्र करना, जिक्र को समझना, ये बहुत ही मुकद्दस काम है, राइट. और जो लोग इससे इंटरेस्ट लेते हैं, इसके साथ रहना चाहते हैं, मतलब जिक्र में रहना चाहते हैं, उनके लिए ये किताब लिखी गई है. यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिनको जिक्र से दिलचस्पी नहीं है, जिनको ये शौक नहीं है कि जिक्र करना है, उनके लिए ये किताब कोई काम की नहीं है. तो ये उन्हीं लोगों के लिए काम की बात है जो जिक्र में बहुत शौक रखते हैं, जिक्र के अंदर जो छुपे हुए राज हैं उनको पाना चाहते हैं, राइट. तो उनके लिए ये किताब लिखी गई है. तो हम आगे चलते हैं. जिक्र के लुग़वी मायने. जिक्र अरबी लुगत में याद को कहते हैं. तो लफ्ज जिक्र जो है वो अरबी का लफ्ज है और इसके सिंपली माना है याद करना. गुजराती में जब हम पढ़ते हैं यादगिरी, इंग्लिश में रिमेम्बरेंस, राइट. तो अरबी में याद को जिक्र कहा जाता है. और याद एक ऐसा लफ्ज है जिसका इस्तेमाल किसी चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में दुरुस्त और सही होता है जबकि वो चीज इंसान के दायरा मालूमात में आने के बाद फरामोश हो गई है. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब भी हम कोई चीज के बारे में कहते हैं कि मुझे याद है, और याद का अपोजिट मैं भूल गया, तो भूलना उस वक्त होता है कि जब किसी चीज को हम जानते थे. जब हम किसी चीज को भूल गए तो याद नहीं है. तो अल्लामा साहब हमें समझाते हैं कि जब हम जिक्र की बात करते हैं तो जिक्र का ताल्लुक याद से है, क्योंकि मायना जिक्र के याद है. और जब हम यादगिरी यानी कि जिक्र में याली अली जब करते हैं, उसकी वजह जो है वो याद करना. इस यादी का मकसद है कि कोई ऐसी चीज है जो हम भूल गए हैं. ये बहुत ही तवज्जो तलब बात है कि वो क्या बात है जो हम भूल गए हैं, वो क्या बात है जो हम भूल गए हैं. क्या हम ये जब याली अली तस्बीह निकालते तो हम क्या याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए हमको यादगिरी में रहना जरूरी है, ये सवाल पैदा होता है, राइट. तो या तो इंसान के दायरा मालूमात में आने के बाद फरामोश हो गई, हम जानते थे और भूल गए हैं, या सिर्फ ध्यान हट गया है हमारा, या सिर्फ तवज्जो उससे हट गई है. इसके बरक्स अगर कोई शय ऐसी हो कि वो ना तो महसूस हुई हो
اور ना ही माकूल व मालूम, यानी वो अब तक इंसान के इल्म और मारिफत में नहीं आई है, तो ऐसी चीज के मुतालिक याद का लफ्ज नहीं बोला जाता। यही मिसाल भूल जाने की भी है कि किसी शय को भूल जाना हरगिज नहीं कहते जो सिरे ही से इंसान के इल्म और मारिफत से बाहर। तो शायद बहुत सारे अल्फाज हैं, लेकिन इसको बहुत ही सादा तरीके से समझने के लिए, क्योंकि हम रूहानियत के रास्ते के मुसाफिर हैं, और इसको समझने के लिए जो अल्लामा साहब हमें समझा रहे हैं वो ये बात है कि जब हम जिक्र का इंटेंशन करते हैं, या हम जिक्र तस्बीह निकालते हैं 12 बजे की, या जो भी हम तस्बीह जमात खाने में या इंडिविजुअली जो निकालते हैं, वो उसका जो मतलब है याद करना। किस चीज को याद करें? जो हम भूल गए हैं। और भूली वो बात होती जिसके बारे में हमको मालूम होता है। तो वो क्या बात है जो हमको मालूम थी, हम भूल गए हैं, तो हमको इतना ज्यादा जिक्र करना पड़ रहा है। और इमाम फरमाते हैं कि यादगिरी का काम जो बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसी क्या चीज है जो हम भूल गए? रूहानियत के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए हमें इतना ज्यादा जिक्र करने के लिए क्यों कहा जाता है कि हर वक्त आप यादगिरी में रहो? याद करना क्या है? मुझे क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि भाई ऐसी क्या बात है। तो अल्लामा साहब बताते हैं कि भाई जब भी हम याद करने की बात करते हैं तो कोई चीज ऐसी है जो हमको मालूम है लेकिन हम भूल गए। अब इसको हम गिनान से अगर रिलेट करें तो पीर क्या फरमाते हैं कि आत्मा आराम तुम्हें बड़ा गिनानी। गिनान आत्मा में है। क्यों हमको याद नहीं है? हमको क्यों याद नहीं आ रहा है? क्योंकि हम भूल गए हैं। गिनान कहीं बाहर नहीं है, गिनान हमारे अंदर भी है। लेकिन उसको पहुंचने के लिए, उस तक, उस खजाने तक पहुंचने के लिए, उस चीज को जो हम भूल गए हैं उसके लिए हमको याद करना है, जिक्र करना है, ताकि जो हम भूल चुके हैं वो हमको याद आ जाए। तो क्वेश्चन अभी भी है कि वो क्या है जो हम भूल गए हैं। तो देखते हैं कि आगे अल्लामा साहब क्या हमको बता रहे हैं इस तरह। तो हम पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले। तो बड़े इंटरेस्टिंग बात अल्लामा साहब कहते हैं कि याद की 5 सूरतें हैं। हम जब यादगिरी का जिक्र करने की बात करते हैं, याद करने की, तो इसकी 5 कंडीशंस और 5 फॉर्म्स हैं। वो क्या है? तो मिसाल के तौर पे जैद के नाम से एक छोटा सा लड़का था। उसने अपने उस्ताद से 4 अल्फाज का एक नया सबक लेकर कुछ देर तक दोहराया और बस हमें खुद हिफ्ज और याद कर लिया। यानी कि एक मिसाल दी एक बच्चे की, छोटा सा बच्चा है जिसका नाम जैद है। अरबी के लेसन में हमेशा जैद का नाम जरूर आएगा, आप देखेंगे। तो जैद जो एक बच्चा है, छोटा लड़का है, उसको टीचर ने 4 वर्ड्स का कोई लेसन सिखाया। उसने रट्टा लगाया और याद कर लिया। दूसरे दिन जब उसने किताब खोलकर देखा तो उसको मालूम हुआ कि उसको सिर्फ एक ही लफ्ज मुकम्मल याद था। नेक्स्ट डे ओनली, दिन ज्यादा नहीं हुए, 4 अल्फाज का लेसन सीखा। नेक्स्ट डे जब बुक खोली तो 4 में से सिर्फ उसको एक लफ्ज याद था, 3 लफ्ज भूल गए। तो फिर उसने क्या किया, एक और लफ्ज भूल जाने के बाद खुद ब खुद उसे याद आ गया। वो 4 लफ्ज में से एक याद था, दूसरा लफ्ज खुद ब खुद याद आ गया। तीसरा लफ्ज इसके गौर करने के नतीजे में याद आया। तीसरा वर्ड कैसे याद है? उसने सोचा तो उसको याद आ गया, गौर किया, याद आ गया। चौथा लफ्ज जो बिल्कुल ही भूल चुका था, गौर करने के बावजूद भी याद नहीं आया, इसलिए उसने मौलिम से पूछकर उसे दोबारा याद कर लिया। तो टीचर से पूछ के उसने याद कर लिया। अगेन क्वेश्चन ये है कि हमारी क्लास में ये बात करने का मकसद क्या है? अल्लामा साहब जिक्र के लेसन में हमको ये क्यों समझा रहे हैं? हमको गौर करना है, क्योंकि ये बात ऐसी नहीं, ये हमारी बात हो रही है, जैद कोई और नहीं है, हम एवरी इंडिविजुअल हियर, राइट? तो बचपन की उम्र है, बच्चे की बात हो रही है। रूहानी इल्म जब तक हमारे पास नहीं है तो हमारी उम्र 80 साल हो, 60 साल हो के 20 साल हो, कुछ आता नहीं है, राइट? तो टीचर ने 4 वर्ड्स का लेसन सिखाया। हमारी इंसान की जो खसलत है ना, कि हम भूलने की हमारी बीमारी है। तो 4 में से 3 अल्फाज तो भूल गए, एक ही याद रहा। लेकिन दूसरा लफ्ज खुद ब खुद याद आ गया। तीसरा लफ्ज याद आने के लिए जो इसने गौर किया तो याद आया, और चौथा जो वो टीचर ने बता दिया। यानी याद करने की ये डिफरेंट सूरतें हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। रिमेंबर हमने क्या बोला कि हमको वो याद करना है जो हमारी आत्मा में है। लेकिन वो याद कैसे आए, उसको याद कराने के लिए, उसको समझाने के लिए ये एक मिसाल के तौर पे हमको समझाया जा रहा है। तो इसको और समझने के लिए आगे चलते हैं, क्योंकि डिटेल में हमको
अब समझाते हैं कि वो है क्या। इस मिसाल से ये हकीकत जाहिर हुई कि जिक्र यानी याद की कुल 5 सूरतें हुआ करती हैं। अब हम ज़ैल में इन 5 सूरतों की अलग अलग वजाहत करते हैं। तो 5 सूरतें हैं याद करने की। हमें तो लगता था कि हम याली याली कर रहे हैं, तो हम तो याद कर रहे हैं, तो याद आ जाना चाहिए हमको, तो सारी रूहानियत सारी मारिफत मिल जानी चाहिए, हमको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जब हम इल्म हासिल करते हैं तो पता चलता है कि भाई याद करने की भी 5 हालतें, 5 सूरतें हैं। हमें जानना चाहिए वो क्या सूरतें हैं, ताकि हमारे अंदर भी वो यादी आए जो हम भूल गए। तो पहली सूरत, इंसान जो कुछ देखता है, जिन आवाजों को सुनता है, जैसे सूंघता है, जो चीजें चखता है, जिन अशिया को छू लेता है, इन सब के नताइज, तजर्बात और मालूमात का जखीरा उसकी कुव्वत हाफजा की तहवील में महफूज रहता है। थोड़ी सी मुश्किल उर्दू के वर्ड्स हैं, लेकिन आई एम श्योर इसको हम जब डिस्कस करेंगे, और जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं साथ साथ। इसके अलावा फिक्री और रूहानी किस्म की मालूमात भी हाफजे ही के सुपुर्दगी व निगहदाश्त में होती हैं। इस सिलसिले में कुव्वत ज़ाकिरा के अमल और याद की अव्वलीन सूरत की वजाहत यह है कि किसी चीज को हवा से ज़ाहिरी या हवा से बातिनी के तवस्सुत से महसूस और मालूम करके कुव्वत हाफिजा के सुपुर्द कर देना हिफ्ज कहलाता है। सो दिस इज एक्चुअली, यहाँ पे जो बात हमें बताई जा रही है वो रट्टा मेमोराइजेशन की बात करने की बात हो रही है, किस तरह से मेमोरी होती है। और हम रिमेंबर कि हम बच्चे से एग्जांपल ले रहे हैं कि एक बच्चा होता है तो वो टेस्ट करता है किसी चीज को, तो उसकी टेस्ट उसकी मेमोरी में रह जाता है कि ये खाना जो है ये मीठा है या फीका है, वॉट एवर है, वो मेमोरी में जबान के जरिए से उसकी मेमोरी दिमाग में चलेगी। कुछ देखा, आंखों से मेमोरी दिमाग में गई, कान से सुना मेमोरी दिमाग में गई, किसी चीज को टच किया, ये सॉफ्ट ब्लैंकेट है अच्छा लगता है, इसकी मेमोरी, टच की मेमोरी दिमाग में गई। मीनिंग जो हमारे 5 सेंसेस हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिलती है वो स्टोर हमारे इंटेलेक्ट में, हमारे ब्रेन में होती है। रिसीविंग जो चीजें हमें हमारे फिजिकल सेंसेस, हमारी इंद्रियों से, जो गुजराती में हम कहते हैं हमारी सेंसेस से हमको मिलता है, वो तमाम चीजें उसकी स्टोरेज हमारे ब्रेन में, हमारे हाफिजा में होती है, राइट, जिसको हम मेमोराइज कर लेते हैं। तो जो ये पहली जो चीज है, हम बच्चे की मिसाल से हमको आसान मिलेगा। एक बच्चा है जिसको आप स्ट्रॉबेरी देते हैं, उसको अच्छी लगती है, नेक्स्ट डे आप इसको कोई और फ्रूट देते हैं, लेकिन उसके दिमाग में याद है कि उसको स्ट्रॉबेरी अच्छी लगी थी, वो कलर आंखों से देखा है, उसकी फील कैसा सॉफ्ट था, उसका टेस्ट कैसा था, उसको तो स्ट्रॉबेरी चाहिए क्योंकि मेमोरी में सेट है कि मुझे तो स्ट्रॉबेरी चाहिए। मकसद ये है कि जब कोई मोमिन सालिक अपने आप को इल्म के रास्ते पे लगाता है, तो वो अपने 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके वो यादी में रहता है। यादी क्या होती है बिगनिंग में? बेटा दुआ पढ़ना है, सलवात पढ़ो, याली याली करो, समझ कुछ नहीं आ रही, लेकिन जो सेंसेस से इंफॉर्मेशन है वो सेव हो रही है ब्रेन के अंदर। मीनिंग कि लिटरली हर सेंस के रिसीविंग एंड पे एक सोल है, एक जो भी, जैसे टेस्ट है स्ट्रॉबेरी का, राइट, वो टेस्ट कहाँ है? कैन वी फाइंड द टेस्ट? हमको मिल सकता है? नहीं, लेकिन हमको मालूम है टेस्ट कैसा है। तो टेस्ट का जो मेमोरी है वो कहाँ पर है? मेमोरी इधर है। हमें ये समझना है कि हमारी अकल का क्या ताल्लुक है। हम जो अकल की बात करते हैं ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अकल की कितनी अहमियत है। तो जब हमको ये कहा जाता है भाई कलाम है मौला तो तुम रट लो, याद कर लो, फरमान तो तुम याद कर लो, मेमोराइज कर लो, याली याली करना है, इस जिक्र को, आयतुल कुर्सी को याद कर लो, दुआ नूर को याद कर लो। अरे भाई याद क्यों कर ले? क्योंकि बिगनिंग ऑफ द लर्निंग, जो मेमोरी, जो जिक्र है वो याद से है, आंखों से, कान से, जबान से उसकी यादी जो है वो हमारे इंटेलेक्ट में सेट हो जाती है, एक मेमोरी में हम उसको सबमिट कर देते हैं, वो उसकी स्टोर फाइल वहां होती है जिसको वो रखता है। फिर जब भी हमको याद करना है, वही आयतुल कुर्सी पढ़नी है, तो हमारे ब्रेन में से इमीडिएटली वो जहाँ पे मेमोरी मेमोराइज किया है वो जबान पे आता है, दिमाग में आता है, आंखों के सामने अल्फाज आते हैं और हम याली 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 करते हैं। इसी मिसाल को रहे आप इसमें आजम पे, कि भाई इमाम ने हमको इसमें आजम दिया, हम इसमें आजम को छुपा के अपने दिल के अंदर रखते हैं। कहाँ रखा है? मुझे दिखाएं, किधर है? इधर है।
जिसको हम ढूंढ नहीं देख नहीं सकते। यानी दिमाग के अंदर एक सोल है जिसके अंदर उसको रखा गया है। हमने मौला को कानों से सुना, उस अल्फाज को आंखों से देखा, समझा, जबान से बोला, उसकी स्टोरेज यहाँ हो गई, अब उसको हमको रिपीट करना है। तो ये वाला जो फर्स्ट जिक्र का जो फॉर्म है वो है रिपीटेशन। बार बार रिपीट करने से हमको एक चीज की याद रह जाती है कि वो चीज क्या है, उसकी याद ही हमको रिपीट करने से आ जाती है। तो जिक्र की सबसे पहला तरीका है इज टू रिपीट इट, बार बार याद करना, उसको रिपीट करना। और फिर वहां से हिफ्ज याददाश्त की पुख्तगी और तसल्ली के लिए कुव्वत जाकिरा। कुव्वत इज द एबिलिटी, और जाकिरा जिक्र करना, कि जब भी हमको आयतुल कुर्सी या इसमें आजम स्टोर है या दुआ नूर स्टोर है, ये सब स्टोर है यहाँ पर हमारे अंदर है। तो जब जाकिर किसको बोलते हैं, जिक्र यादी, जाकिर जो जिक्र करता है, जो यादी करता है, कुव्वत वो एबिलिटी। तो जो भी जिक्र करने वाला है उसकी एबिलिटी से जो वो याद रिपीट करता है, तो वो फौरन से ब्रेन में से जबान पे आता है और आयतुल कुर्सी या इसमें आजम हम रिसाइट कर सकते हैं, राइट। तो इसको दोहराते हुए दिल व जबान पर लाना, ये सिर्फ इसका तस्वुर करना जिक्र और याद की सबसे पहले सूरत है। इसका तस्वुर करना, जब हम इसमें आजम की इबादत करते हैं तो हम जबान से बोलते नहीं हैं, लेकिन हम इमेजिन करते हैं उस शब्द को, राइट। हमारे आंखों के सामने वो शब्द होता है, वो वर्ड होता है, वो कलीमा होता है, और हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन खामोशी से पढ़ते हैं, दिल के अंदर पढ़ते हैं, राइट। लेकिन हम पढ़ते हैं, इसको दोहराते हैं। तो पहली जो इब्तदा है हमारे रूहानियत के अंदर आगे बढ़ने की, जिक्र से यादी, इमाम के करीब होने की, वो रिपीटेशन है। इसीलिए बच्चों को जब कुरान पढ़ाते हैं, तो अगर आपने कुरान क्लास में बच्चों को देखा होगा, अलिफ जबर आ बे ज़ेर बे, इस तरह से पढ़ते हैं, रिपीट रिपीट रिपीट। या फरमान याद करा रहे हैं, कोई भी याद कराना है, रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, देयर इज नो अदर वे। अगर किसी को रूहानियत के अंदर आगे बढ़ना है और उनको सीखना है कि मैं कैसे यादी में रहूं, मैं भूलूं नहीं, तो पहला तरीका जो है वो रेपिटेशन, रिपीट 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 एंड रिपीट, राइट। तो ये हो गया जिक्र की पहली सूरत, जिसे जैद ने पहले दिन अपने सबक को दोहरा कर याद करने की कोशिश की थी। तो रिमेंबर, हम एक बच्चे की बात करें जो हम भी हैं। जब हम रूहानियत के सफर पे जब हम मोमिन बनते हैं, शुरू करते हैं, तो हमारी भी वही मिसाल है। तो हमको अपने आप पे अप्लाई करना है, यहाँ पे बच्चे की मिसाल है, लेकिन हम अपने आप को बच्चा इसलिए कहते हैं कि भाई हमारी उम्र ही क्या है, इल्म के अंदर, रूहानियत के अंदर हमारी उम्र ही क्या है, राइट। ये हमको इस तरह से सोचना है ताकि हम इसको समझ सकें। तो पहली सूरत रिपीटेशन। कितने मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन यहाँ पर हैं जो अगर कोई नई चीज सीखते हैं उसको रिपीट करते हैं। अगर रिपीट नहीं करेंगे तो याद नहीं रहेगा। और अगर कोई कहता है कि मुझे तो याद नहीं रहता है, आई होप कि आपको जवाब मिल गया कि क्यों याद नहीं रहता है। क्योंकि आपने रिपीट नहीं किया, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में, कितना भी डिफिकल्ट हो। याद करने का पहला तरीका इज रेपिटेशन, रिपीट करना है, राइट। तो ये हमारे लिए होगा कि अगर हमको रूहानियत में आगे तरक्की करनी है, हमको पता है कि इल्मुल यकीन पहला स्टेज है, उस पहले स्टेज को हमको आगे बढ़ने के लिए रेपिटेशन के अलावा कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। याद रखना है तो रिपीट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं दूसरी सूरत में, राइट। दूसरी सूरत में क्या है, कुछ बातों को पहली बार हाफिजा और जाकिरा के जरिए से दोहरा दोहरा कर जब ये समझा जाता है, कब ये बातें हाफिजा के रिकॉर्ड ऑफिस में महफूज हो गई, तो फिर इंसान वहां से तवज्जो हटाकर दूसरी मसरूफियात में लग जाता है। और जिस वक्त भी उसे जरूरत हो तो वो फौरन ही अपनी कुव्वत जाकिरा को हाफिजा की तरफ मुतवज्जा करके हुक्म देता है कि कुछ वक्त पहले जो बातें हिफ्स की गई थी वो दिल व जबान पर लाओ। चुनाचे जाकिरा हाफिजा से पूछ लेती है या खुद झांक कर देखती है। अगर वहां मतलूबा बातें महफूज हैं तो वो इस हुक्म की तामील कर सकती है। ये अमल की दूसरी सूरत है। अब जो लोग उर्दू समझते हैं वो बड़े समझ सकते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म या डिफरेंट लोग हैं जो काम करें। एक का नाम जाकिरा है, एक का नाम हाफिजा है। तो आप जानते हैं ये किसके नाम है? ये अलग अलग रूहों के नाम है जो हमारे अंदर है। हमारी जो हमारा जो बीइंग है वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ सोल से बना हुआ है, बहुत सारी सोल से बना हुआ है। एक याद की सोल है, एक मेमोरी की सोल है। तो हर चीज की एक रूह है। तो जो दूसरी जो सूरत है वो ये है कि जिसने रिपीट किया, हिफ्स किया,
किसने? जाकिर ने किया, राइट, जिक्र जाकिरा, राइट। उसने जब किया तो वो उसको कुछ और काम हुआ तो कुछ काम करने लग गए और फिर दोबारा, अरे आयतुल कुर्सी मुझे याद है कि नहीं याद है, लेट मी रिकॉल, लेट मी रिपीट, लेट मी फाइंड आउट। तो वो ऐसा हुआ कि हम अपने ब्रेन में कहीं ऑफिस के अंदर जो स्टोर किया तो उसको खोला, भाई वो फाइल कहाँ है, वो फोल्डर कहाँ है, आयतुल कुर्सी जहाँ सेव है, एंड लेट मी रिपीट के मुंह पे आती है कि नहीं आती, राइट। तो जब भी हम कोई नई चीज लर्न करते हैं और हम दुनिया के काम भी करने, दूसरी चीज भी काम करने, जॉब पर हैं जो भी है, तो ध्यान हट जाता है। लेकिन इमीडिएटली जब हमको याद आता है, अरे हम जिक्र नहीं कर रहे, हम भूल गए, आज हमारा इंटेंशन था कि हमको तो हस्बुल्लाह पे जिक्र करना है पूरा दिन, तो हम जिक्र भूल गए, तो फौरन से हमको याद करना है, याद आया कि नहीं आया। तो वो याद, हमारे और यादी के बीच में बहुत सारी रूहें हैं। यादी की भी रूह है, जो जो जिसने संभाल के रखा है वो भी रूह है। तो वो रूह से रूह का कनेक्शन होते हुए वो जबान पर आता है और याद आता है कि भाई अब मुझे याद आ गया है, ठीक है ना। और मजे की बात है, यहाँ पे अगर गौर करते हैं तो यहाँ पे समझना चाहिए कि जाकिरा हाफजा से पूछ लेती है या खुद जांच कर देखती है। तो यहाँ पे भी गौर तलब बात है कि कुछ मोमिनीन की रूह हैं, चूंकि वो इतने अमल में और जिक्र में पाक होते हैं कि वो जो कैसे कहना चाहिए, इसकी मिसाल क्या दे कि अगर कहें कि बेटा आप जो है ये चीज जो है किचन में पड़ी है, ओके, ठीक है, આની મિસાલ હું ગુજરાતીમાં આપું છું કે આને સમજવા માટે કે જેવી રીતે આપણે કોઈ બચ્ચાને કે બેટા કિચનમાં પડ્યું છે તું ઉપાડીને આવતો, તો બચ્ચું કે મને ખબર નથી, તો બેટા તું પપ્પાને પૂછ કે ક્યાં પડ્યું છે। તો કેટલા બધા સ્ટેપ્સ છે કે બચ્ચું પોતે જાય ગોતે પછી કોઈને પૂછે ને પછી લાવે, તો આટલા બધા સ્ટેપ્સના બાદ પછી એ ચીજ લાવી શકે। હવે આ બદલા બધા સ્ટેપ્સને પોતાના અંદર આપણે જ છીએ અને આપણે યાદી કરી રહ્યા છીએ અને આપણે યાદ નથી આવતું, આપણે યાદ ભૂલી જઈએ છીએ, રાઈટ। તો એવું થયું કે બેટા કિચનમાં જા અને યાદ કરીને પૂછ અને લાવી, આ સ્ટેપ્સ બધા પોતાના અંદર, તો આટલી બધી રૂહ છે એકચ્યુઅલી, બધી જ મેમરીના અંદરથી રૂહ આપણને યાદ દેરાવે છે। પણ એના મુકાબલામાં એવા પણ હોય છે જે લોકો આંખો બંધ કરીને ध्यान કરે છે અને તરત એ મેમરીને એ ફાઇલને પકડી લે છે અને યાદ આવી જાય છે। આ બધું આપણા અંદર આ એક રૂહાની તौर પર આ બધું મિકેનિઝમ એક્ઝિસ્ટ કરે છે। જ્યારે જ આપણે આ બધી ચીજો દુનિયાના અંદર શીખીએ છીએ ને દુનિયાના અંદર આગળ વધીએ છીએ, પણ ક્યારે આપણે વિચાર નથી કરતા કે આ બધું કેવી રીતે થાય છે, દુનિયાના અંદર એટલી અક્કલ કે દુનિયાના એટલી ચીજો કેવી રીતે આવે છે, આપણે ક્યારે પ્રોસેસ જે છે ને એમાં નથી ગौर કરતા। બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગલી અલ્લામા સાહેબ આપણે આ ચીજને સમજાવી રહ્યા છે કે તમે સમજો આ વાતને કે આ બધું કામ જે છે ને રૂહનું કામ છે, આ બધી રૂહો છે જે મહેનત કરી રહી છે, પણ આપણે આ બધી મહેનત છે ને દુનિયાના કામ ઉપર લગાવેલી છે। અને હંમેશા આપણે માફીના સાથે કમ્પ્લેન કરી કે ભાઈ રૂહાની તરક્કી નથી થતી, મને યાદ નથી રહેતું, મને આમ ને મને તેમ, આપણે બધા એક્સક્યુઝ ને કમ્પ્લેન કરતા હોઈએ છીએ। કેમ કે આપણે વિચાર નથી કરતા કે જેટલું આપણું મગજ ને આપણી જે બિલ્ડિંગ છે, આપણું બધું જે તન છે, દુનિયામાં તો બધું બરાબર કામ કરે છે, પણ જ્યારે ઇલ્મ ને રૂહાનિયતની વાત આવે છે તો આપણે મસલો થાય છે। તો એ આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે તમે વિચાર કરો કે એક પ્રોસેસ છે, એ પ્રોસેસના અંદર પણ જે યાદગીરી કરવા વાળો માણસ છે, એક માણસને બચ્ચાને કીધું કિચનમાં ગયા ને પછી કોઈને પૂછ્યું ને પછી ફાઇલ આવી, અને એક છે જે તરત વિચાર કરે છે ને યાદ આવી જાય છે। તો એના અંદર પણ દરજા છે, જેટલી આપણા અંદર પાકીઝગી અને આપણું જેટલું ધ્યાન આ રસ્તા ઉપર આ જર્નીના અંદર જેટલું વધારે રહેશે, જેટલું આપણે વધારે રિપીટ કરશું, આટલી તરત તરત આપણે યાદી આવશે। તો આ બધું ચીજો આપણા અંદર એક્ઝિસ્ટ કરે છે। તો જો બીજી ફોર્મ જે છે જે આપણને સમજવાની છે યાદીની, એ છે અહીંયા રિકોલ કરવાની। લેટ મી રીડ ઇન ઇંગ્લિશ કે તમને ઇંગ્લિશનો બરાબર વર્ડ, if the required words are there the mem okay, તો જે શબ્દો આપણે ખબર હતા, આપણી મગજના અંદર આપણે ધ્યાન કર્યું તે તરત આવી ગયું, તરત મોઢા પર આવી ગયું, અને આને સેકન્ડ ટાઈપ ઓફ સેકન્ડ ફોર્મ કહેવાય છે કે યાદીની। મતલબ આ એક ચીજ આપણે મગજના અંદર રાખી હતી અને આપણે બોલાવી, આ તરત આવી ગઈ અને આપણે યાદ આવી ગયું। હવે ત્રીજી જે सूरत છે એ છે કે बाज दफा आदमी अपनी याददाश्त की कुछ बातें भूल जाता है और हैरत से कभी कभार इनमें से कोई बात खुद ब खुद याद आ जाती है, जिसकी वजह यह है कि हाफिजा जाकिरा वगैरह की कुव्वतों के काम पर
इंतहाई छोटे छोटे शऊरी या नूरानी जर्रात मुतइन हैं जिनमें छोटी छोटी हैवानी रूहें कार फरमा है। इनमें से वो जर्रा जिस पर मुतालिका बात रिकॉर्ड की गई थी अपनी जगह से गैर हाजिर हो जाने की बाद यकायक हाजिर हो जाता है या लाशऊरी के बाद शऊर में आता है, जिसके साथ वो बात भी दफतन याद आती है जो इस जर्रे के रिकॉर्ड में थी। ये याद की तीसरी सूरत है। जिस तरह के जैद को सबक के भूले हुए अल्फाज में से एक लफ्ज बगैर किसी और के खुद याद आया था। तो अब ये वाली અહીંયા जी કહેવામાં આવી રહ્યું છે ને, અહીંયા ત્રીજી તરીકો છે અને અહીંયા જો સમજાવે છે અગર આપણે શબ્દ ओके तो उर्दू में भी समझाएं, शुक्रिया। ओके, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, इट्स हेल्पिंग मी। तो उर्दू यहाँ पे अल्लामा साहब हमें ये समझा रहे हैं कि हमको ये पता होना चाहिए, हमारे अंदर का सिस्टम हमें पता होना चाहिए। फिजिकली हमको क्या पता है, ये मेरी उंगली है, ये मेरे नाखून है, हमको पता है ना, ये मेरे बाल हैं। इसी तरह इल्म से हमको पता चलता है कि हमारे अंदर बहुत सारी रूहें, हैवानी रूहें हैं, याद की रूहें हैं, ये तमाम मेमोरी की रूहें, ये तमाम रूहें हैं, राइट। तो अल्लामा साहब हम बताते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमको कोई बात याद थी और अचानक बिल्कुल पता ही नहीं, भूल गई। अचानक एक दिन बैठे और याद, अरे ये बात तो मैं भूल गई थी, ये कैसे याद आ गई। तो ऐसा जब होता है तो क्या होता है हमारे अंदर, प्रोसेस क्या होता है, वो ये होता है कि हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर, हमारे अंदर जो छोटी छोटी रूहें हैं, नूरानी जर्रात, ये लिटरली ल्यूमिनस पार्टिकल्स हमारे अंदर हैं, मौजूद हैं, जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन सेव्ड है। हमारी रूहों के अंदर ये इंफॉर्मेशन सेव्ड है। लेकिन क्या होता है कि ऑफ कोर्स हम जो है जब कॉन्शियसनेस में नहीं है और अचानक से वो नूरानी जर्रा जो है वो हमारी मेमोरी में आगे आ जाता है, अचानक से खुद ब खुद, कोई हमारा अमल दमल दखल नहीं है इसके अंदर, अचानक से खुद ब खुद आ जाता है, जो रिकॉर्ड में सेव था खुद फाइल सामने आके आ गई और हमको याद आ गई, तो याद आ जाती है। तो ये दुनिया की मिसाल के लिए तो हमको समझ में आता है कि ऐसा होता है हम तमाम के साथ कि अचानक, अरे ये तो मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मैंने यहाँ चीज यहाँ रखी थी, अच्छा आई एम ग्लैड कि मुझे याद आ गया। आपको मालूम है इसके पीछे जो बात समझाई जा रही है वो क्या है? जो बात समझाने की है वो ये है कि एज मोमिनीन अगर हम इस रास्ते पे चल रहे हैं, जब कोई मोमिन जिक्र में रहता है ना, यादी याली 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 याली, कुछ कनेक्शन नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, मैं बस हस्बुल्लाह पढ़े जाऊं, मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है भाई, कितने फ्रेंड्स आके ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर आप रिपीट करते हैं आयतुल कुर्सी या दुआ, ये सब रिपीट करते हैं, कुछ हो ना हो, रिपीट जब करते हैं ना, तो रिमेंबर कि जो हमारे फरिश्ते जो असाइंड होते हैं ना, वो अचानक से उस नूरानी फाइल को हमारे अंदर जो हम भूल चुके हैं, वो आगे पीछे पड़ी हुई, उसको फॉरवर्ड करके हमारे याद ही में लाते हैं। अरे ये बात तो मैं भूल गई थी, ये कैसे याद आ गई, हमारा तो कोई दखल नहीं है, तो बात कैसे याद है। अंदर वो फरिश्ते काम कर रहे होते हैं जिसको हम रिपीट कर रहे हैं, जिसको हम याली याली कर रहे हैं। तो ये भी याद की एक सूरत है जो हमको नजर नहीं आती है, दिखाई नहीं देती है, तो हमको लगता है कि भाई पता नहीं कैसे याद आ गई, पता नहीं, ऑफ कोर्स हमारी नॉलेज में नहीं है, लेकिन खुद ब खुद कोई चीज नहीं होती है, इसके बैकग्राउंड में बहुत सारा काम है, बहुत सारी मेहनत है। किसकी मेहनत है? हमारी मेहनत है। अगर हम ईमान लाते हैं इमाम के नाम, इमाम के इस्म आजम, इमाम की यादी पे याली याली करते हैं, जब जिक्र हम शुरुआत करते हैं तो हमको ये, हमने क्यों ये किताब उठाई है कि कितने दोस्त आते हैं कि भाई हम पढ़ रहे हैं, लेक्चर्स भी अटेंड करें कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ तरक्की नहीं हो रही है। रिमेंबर कि जब हम करते जाते हैं ईमान के साथ, अचानक से हमको याद आएगा, अरे मैं तो जिक्र कर भी नहीं थी, मैं तो ये कलाम याद भी नहीं करी थी, अचानक से ये कलाम खुद ब खुद कैसे बज रहा है मेरे अंदर। ऐसा था जैसे कोई अंदर से कलाम गा रहा है। तो कौन गा रहा है भाई? अगर आप नहीं गा रहे तो आपके अंदर है कौन? एक पूरी दुनिया है जिसका नाम आलम शख्सी है। वो दुनिया जिसके बारे में मौला अली ने हमको समझाया कि हमको नहीं मालूम है, तो हमको लगता है कि कुछ नहीं है, कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, और हमारे अंदर सब्र भी नहीं है, हमको कंप्लेन करना है, बजाय इसके कि याद करें हम कंप्लेन करते हैं।
تو علامہ صاحب اس یاد کے پیچھے سے ہم کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو پیچھے فائل ہوتی ہے نا، جب ہم ریپیٹیشن کی پہلی ایکسرسائز وہ بچہ جب کرتا ہے الف بے بے پہ اور اے بی سی ڈی 1 2 3 ٹائم آتا ہے اس کو اے بی سی ڈی پورا آ جاتا ہے. تو ہاؤ ڈیڈ ہی لرن؟ بائی ریپیٹیشن. تو اگر مومن ہے اور مومن شروعات میں ریپیٹ کرتا ہے تو اندر جو فرشتے ہیں وہ آگے اس کی مدد کرتے ہیں اور اچانک سے اس کی بتی کھل جاتی ہے. کوشش نہیں کی تھی، کیا تھا؟ ریپیٹیشن کیا تھا. تو ہوتا کیا ہے اس میں جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ مولا کی جب رحمت آتی ہے نا اچانک بھی آتی ہے. اچانک سے معجزات ہوتے ہیں ہمارے اندر جو ہم لیسٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مومن کا کام جو ہے وہ یادگیری میں رہنا ہے. جب ہم ایکسپیکٹیشنز کرتے ہیں نا تو ایکسپیکٹیشنز ہم کو لے جاتی ہے، ڈبا دیتی ہے. کیوں؟ جب ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی ہے تو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے. ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے تو ہمارا فرسٹریشن ہوتا ہے، پھر ہم محنت نہیں کرتے، یادی سے ہم ہٹ جاتے ہیں. تو یہ تمام باتیں انٹر کنیکٹڈ ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ اندر سے پورا ایک میکینزم ہے روحوں کا جو کام کر رہا ہے. ریممبر کہ مومن کی محنت کبھی بھی ضائع نہیں جاتی ہے. جو مومن محنت کر رہا ہے اس کو محنت کا پھل ملے گا. دیر ہے، کیا کہتے ہیں، دیر آیا درست آئے. دیر ہوتی ہے لیکن کبھی بھی نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمارا صبر کا امتحان ہوتا ہے. تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ کچھ باتیں اچانک سے یاد آ جاتی ہیں. اور ہم جان گئے کہ اچانک کا مطلب کیا تھا، کیونکہ یہ نورانی ذرات کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ خود بخود یاد آ جاتی ہیں. તો ગુજરાતીમાં બ્રીફલી મને ઉમ્મીદ છે કે હું એ બહુ આસાન ઉર્દુમાં વાત કરેલી, પણ જ્યારે આપણે કોઈ ચીજ અચાનક યાદ આવી જાય છે, આપણે zikr નથી કરતા ને અચાનક zikr ચાલુ થઈ જાય છે તો આપણે લાગે છે અરે દુનિયાની મિસાલ તો અરે હું આ પૈસા અહીંયા રાખ્યા હતા હું તો ભૂલી ગઈ હતી, આ ચોપડી અહીંયા રાખી હતી, અરે આ કપડું અહીંયા રાખ્યું તો ભૂલી ગઈ હતી, કેમ યાદ આવી ગયા મને? આ દુનિયાની મિસાલ. દીનની મિસાલ, અરે હું તો zikr નહોતી કરી રહી ને અચાનકથી મને એવું લાગ્યું આંખ ખુલીને આ zikr પોતે પોતે ચાલુ હતું અને હું તો આ જ્ઞાન બોલતી નહોતી ને મારા અંદરથી જ્ઞાન ચાલે છે કે કલામ ચાલે છે. તો કોણ બોલે છે? આ પોતે પોત ખુદા યાદ દેરાવે છે. અને ખુદાની જે મદદ છે એ કેવી રીતે થાય છે? જે આપણા અંદર રૂહ છે, જે આપણે જ્યારે યાદગીરીમાં રહી છે, રિપીટેશન મતલબ રટ્ટો, બીજું કાંઈ નહીં, આપણે સમજ નથી આવી રહ્યું, યાલી કરી રહ્યા છીએ, કાંઈ સમજ નથી, પણ એના મદદથી અચાનક, નહીં અજંપ્યા જાપ નહીં, નો, ધીસ ઇઝ નોટ અજંપ્યા જાપ. there is a levels है ना, दर्जात है, ये दर्जात है. अचानक से मोमिन को कोई बात याद आती है, राइट? तो उसको अजंपिया जाप नहीं कहेंगे. एक चीज जो भूल गई थी वो अचानक से याद आ गई, ठीक है ना? तो अचानक से याद आना कि हम कलाम नहीं गा रहे थे और अचानक से हम हमारे जबान पे कलाम आ गया, ठीक है ना? अजंपिया जाप तो ऊंचा मकाम है ना. तो हम तो एक बच्चे की बात कर रहे हैं, रिमेंबर, बच्चा इन स्टेप्स के ऊपर चढ़ते चढ़ते बात कर रहे हैं, तो हम बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं ताकि हम समझें. तो जो भूल गया था वो अचानक याद आ गया. फिर चौथी बात यह है कि यह भी एक आम तजुर्बे की बात है कि इंसान गौर और फिक्र करके बाज भूली हुई बातों की याद ताजा करने में कामयाब हो जाता है. इसका सबब भी जैसा कि ऊपर बताया गया यही है कि दिमाग में मुख्तलिफ कुव्वतों के काम करने के लिए जो अलग अलग खाने बने हुए हैं उनके शऊरी जर्रात किसी सबब से या तो गैर हाजिर होते हैं या इन पर लाशऊरी की कैफियत तारी होती है. चुनाचे जब गौर फिक्र के जरिए से सारे दिमाग में शऊरी व आगही की हरकत पैदा होती है तो इससे वो जर्रात अपने मकाम पर आकर या बेदार होकर काम करने लगते हैं, जिसके नतीजे में भूली हुई बातें दोबारा याद आती हैं. ये याद की चौथी सूरत है जैसे जैद को गौर करने के बाद चौथा लफ्ज याद आया था. तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये जो इंग्लिश में हम कहेंगे टू रिकॉल, टू रिफ्लेक्ट, रिमेंबर, ख्याल करना. इमाम ने फरमाया कि तुम्हें बेकला ख्याल करो. दिस इज अ हायर लेवल ऑफ यादी. रिफ्लेक्शन जो है ख्याल नहीं होता ना, कहाँ से होगा? हमने कितनी बात की ख्याल पे, क्योंकि इट्स अ हायर लेवल ऑफ यादगिरी. इस यादगिरी के लिए क्या बताया जा रहा है कि हमारे वही कुछ बातें भूल गई हैं और हम रिकॉल कर रहे हैं, हम थिंक कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि इसके बारे में हमको क्या समझाया था, इसका क्या मतलब है, हम गौर कर रहे हैं, राइट? आई जोक है ना, मैं हमेशा लतीफे के तौर पे कहती हूँ कि हमको अल्लामा इकबाल बनना पड़ेगा, अल्लामा इकबाल बन के सोचेंगे तो याद आएगा. लेकिन ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि हमको ऐसा टाइम अपने आप के अंदर जो है ना वो रखना है ताकि याद आए.
रिमेंबर कि वेस्टर्न कल्चर में हमको ये बताया जाता है कि भाई मी टाइम होना चाहिए, और मी टाइम की मीनिंग क्या देंगे, भाई आप स्पा में जाएं या यहाँ जाएं या ये करें वो करें। एक मोमिन के लिए मी टाइम पता है क्या है? हैव पीस इन योर हार्ट एंड रिफ्लेक्ट। सुकून से सोचे, सिर्फ सोचे कि अगर मैंने ये गिनान की कड़ी पढ़ी है, ये कलाम को मैंने सुना कि आजा अश्क बरसाए, इसका मायना क्या है, इसकी मतलब क्या है, क्या मैंने समझा है, मेरे दिमाग में क्या ख्याल आया है, कभी हमने गौर किया है? इतनी शांति और पीस के साथ जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं तो रिमेंबर के अंदर पूरी एक दुनिया है जो हमारी ताबेदार है, हमारी दुनिया है, लेकिन उस दुनिया को हमने हमेशा ध्यान उसका दुनिया के काम के लिए लगाया है, दीन के काम के लिए लगाया नहीं है, तो वो नहीं याद आता है हमको। तो यहाँ पे जो हमको बताने की बात की जा रही है कि अगर कोई मोमिन सालिक ख्याल करता है, रिफ्लेक्ट करता है, रिकॉल करता है, तो वो जर्रात, रिमेंबर के पार्टिकल्स हैं, आलम जर का कॉन्सेप्ट हमने सीखा ना, वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल्स, पूरा बीइंग जो है वो वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल्स है हमारे अंदर। तो वो पार्टिकल्स जिसके अंदर, जैसे पार्टिकल का मायना ले फोल्डर है, और फोल्डर के अंदर पेपर्स हैं और चीजें सेव की हुई है, राइट, मेमोरी, हमारी मेमोरी, हमारा फोल्डर हमारे कैबिनेट के अंदर है। अगर हम गौर करेंगे कि किस कैबिनेट में कहाँ रखा था तो वो अचानक से आ जाएगी। लेकिन अलावा साहब बड़े इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे करते हैं कि हमको समझना चाहिए कि होता क्या है, दो किस्म के लोग हैं इसके अंदर भी, कि किसी सबब से जब हमने वो चीज हमारी फाइल के अंदर रखी तो क्या हुआ कि जो शऊरी जर्रा यानी कॉन्शियस पार्टिकल्स थे, किसी वजह से गैर हाजिर थे। इसकी मिसाल दो, अच्छी मिसाल, दुआ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, जमात खाने में हाथ भी उठा रहे हैं, सजदा भी दे रहे हैं, दिमाग कहीं और है, दुआ बोल भी रहे होंगे शायद, लेकिन दिमाग कहीं और है। हाउ कैन इट हैपन? आर्ट वी वन पर्सन? एक चीज बोल रहे हैं, एक चीज कर भी रहे हैं, क्योंकि मेमोरी में सेट है, वो एक्शंस, वो वर्ड्स मेमोरी में है। ध्यान जो है वो एब्सेंट है, ध्यान एब्सेंट है, बट एक ही बिल्डिंग, एक ही शख्स की बात हो रही है। लिटरली हमें ये समझाया जा रहा है कि देखें, इस कनेक्शन को रियलाइज करें कि हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, कि आप कोई चीज जिक्र कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, आपने नीयत की है, आप बोल भी रहे हैं, आपके एक्शंस भी साथ हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। यानी कि जो कॉन्शियस सोल जो होनी चाहिए वो अनकॉन्शियस हो गई है, कहीं चली गई, दुकान में, बिजनेस में, घर में, कहीं चली गई वो। एक्शंस एक्शंस चालू है क्योंकि मेमोराइज है, वो रिपीटेशन से याद हो गया है, बचपन से आदत की हमने, सजदा करना है, हाथ उठाना है, रिपीटेशन से याद हो गया हमें। तो ये भी एक याद करने की समझ है कि आ आ, टाइप ना अंदर चौथी जी ફોર્મ છે એના અંદર એ સમજાવવામાં આવે છે કે કોઈ ચીજ આપણે વિચાર કરીએ, આપણે રિકોલ કરીએ, રાઈટ, પણ રિકોલ કરવા માટે એક મિસાલ જેવી, જમાતખાના અંદર આપણે દુઆ પढ़ता હોય અને આપણે ઓટોમેટિક હાથ ઉપાડતા હોય, ઓટોમેટિક સજદો કરતા હોય, જીભથી શબ્દ भी બોલતા હોય, અગર બોલવા વાળો ભૂલ કરે તો આપણે એને બોલીને ઠીક भी કરાવશું, પર મગજનું ધ્યાન છે ને બીજી ઠેકાણે હશે। આ કેવી રીતે પોસિબલ છે મને સમજાવો। અલામા સાહેબ એ આપણે સમજાવી રહ્યા છે કે આપણા બદન, આપણી આ જે બિલ્ડિંગ છે એમાં અલગ અલગ રૂહ અલગ અલગ જગ્યા ઉપર કામ કરે છે। તો જી રૂહના અંદર જે મેમરી બેઠેલી છે કે રિપીટેશન એક્શન કરવા છે, શબ્દ બોલવા છે, એ પોતાનું કામ કરે છે, પણ જી રૂહ, જી પાર્ટિકલના અંદર જે ધ્યાન, જે કોન્શિયસનેસની જે રૂહ છે, એ કોન્શિયસનેસ બદનને મૂકીને ક્યાંક બીજે વયું ગયું છે। તો જ્યારે આપણે રિફ્લેક્ટ કરીએ છીએ, ધ્યાન કરીએ છીએ, તો એ ધ્યાન પાછો આવે છે। તો જે ચીજ ભૂલાઈ ગઈ છે એ રિફ્લેક્શનથી પણ પાછી આવે છે। તો આ રિફ્લેક્શન ખબર છે ક્યારે આવે છે? એનું જે બેભાની કેમ થાય છે, બેભાની ખબર છે કેમ થાય છે? જ્યારે આપણા અંદર હાઈ હોય છે, ખોટા ખોટી દુનિયાના આ કામ કરવા છે, ઓલું કરવું છે, આ વ્યાધિ, ઓલી વ્યાધિ, શાંતિ નથી અંદર। તો મને જે ચીજ આ વેસ્ટર્ન કલ્ચરના અંદર જે મી ટાઈમ છે ને મને બહુ સારું લાગે છે, પણ મી ટાઈમના વપરાશ આપણે પોતાના દિનના માટે, દુનિયાના માણસો કહેશે તમે મી ટાઈમ તો તમે નાખૂન બનાવવા જાઓ ને, વાળ કરવા જાઓ ને, મસાજ કરવા જાઓ, એવી વાતો કરશે, તમને ભટકાવશે દુનિયાના માણસો। પણ જ્યારે આપણે દિન, આપણે છે સારા પ્રિન્સિપલ હેબિટ્સ પીક કરી લાવીએ, તો મી ટાઈમ સુકૂનથી બેસવાનું, સુકૂનથી, શાંતિથી,
કે મને આ જિકર કરવાનું છે કે હમણાં હું ધુઆ પડીશ, મારું ધ્યાન ક્યાં છે, મારી જે ધ્યાનની રૂ છે એ ક્યાં છે, મારે ભેગી છે કે નથી, તું જમાતખાનામાં છો કે નહીં, કે તું ક્યાં બીજે છો, પોતાને પૂછીએ તો સહી, પોતાને ધ્યાનની રૂને પકડીએ તો સહી. તો જ્યારે આપણે કોઈ ચીજ યાદ કરવી, રિકોલ, અચાનક રિકોલ થાય કે રિફ્લેક્શન કરીએ, જેની ખ્યાલની આદત છે, જ્યારે આપણા તન મનના અંદર શાંતિ હશે ને, તો એ તરત જે પાર્ટિકલ અનકોન્શિયસ થઈ ગયો હતો એ પાછો આવી જાય છે. જે પાર્ટિકલ અનકોન્શિયસ હતો, જો શરૂઆતમાં આપણે કીધું, સમજાવ્યું કે ટીચરે લેસન કરાવ્યું હતું ઝેદને, 4 શબ્દ શીખાડ્યા હતા, પણ એ ધ્યાન બેરો થઈ ગયો હતો, તો એ શબ્દ ખોવાઈ ગયો, મને યાદ નથી, પણ એને ખ્યાલ કરવાથી પાછો યાદ આવી ગયો. આ પૂરી ચીજો સમજમાં આવશે. અગર પૂરી તરહ સમજ નથી આવી તો પેશન્સ રાખો, આગળ આપણે જ્યારે કરશું સમજ પડશે. તો શું કહે છે, वो ज़रात अपने मकाम पर आकर या तो बेदार होकर काम करने लगते हैं, जिसके नतीजे में भूली हुई बातें दोबारा याद आती है. तो होता क्या है कि जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, जब अपने कॉन्शियसनेस से पूछते हैं, तो वो खुद से वापस आती है और हम अपनी जगह पे प्रेजेंट, इंग्लिश में जैसे बी प्रेजेंट. व्हाट डज दैट मीन, बी प्रेजेंट? एम आई नॉट हियर, एम आई नॉट प्रेजेंट? बट नो, यू वुड बी एब्सेंट बट फिजिकली प्रेजेंट. तो जब बी प्रेजेंट, ट्रूली बी प्रेजेंट, मीनिंग यू आर विथ योर कॉन्शियसनेस, बी माइंडफुल, बी प्रेजेंट. એ આ વાત સમજાવવામાં આવી રહી છે અહીંયા. પછી જે 5વી सूरत છે એના બારામાં શું કહે છે, याद की 5वीं सूरत, भूली हुई बातों की बाबत गौर और फिक्र करने से हर बार कामयाबी तो नहीं हो सकती कि दिमाग पर जोर देकर उनकी याददाश्त बहाल की जाए, क्योंकि किसी बात के भूल जाने की एक वजह नहीं बल्कि कई वजह है, और वो ये है कि बाज हालात में हाजिर दिमागी ना होने की वजह से, या तवज्जो ना देने की सबब से, या मुश्किल होने की बिना पर शुरू ही से वो बात हाफजे में नहीं ठहरती, या वो जर्रा हमेशा के लिए गायब हो जाता है, जिसकी रूह में इस बात का रिकॉर्ड था. बहरहाल जब सोचने के बावजूद भी वो बात याद नहीं आती, तो फिर सिवाय इसके कोई चारा ही नहीं कि उसी शख्स से रुजू किया जाए जिसने पहले वो बात बताई थी, ताकि वह असर नौ इस बात को याद दिलाए. ये याद की 5वीं सूरत है, जिसकी मिसाल जैद से मिलती है कि उसने वो लफ्ज जिसे बिल्कुल ही भुला दिया था, अपने उस्ताद से पूछकर दोबारा याद कर लिया. तो 5वीं जो हालत है वो ये है, बहुत ही इंटरेस्टिंग. अगर इसको समझे हम, 5वीं हालत ये है कि याद कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि याद नहीं आ रही, बिल्कुल भी याद नहीं आ रही. तो अल्लामा साहब बताते हैं कि क्यों याद नहीं आ रही, क्यों याद नहीं आ रही. इसकी वजह ये कि अगर इसके अंदर भी दर्जात अल्लामा साहब बता रहे हैं, अल्फाज के अंदर गौर करेंगे पता चलेगा कि लेवल्स है इसके अंदर भी. तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हाजिर दिमाग नहीं होते हैं. સમટાઈમ્સ તમે સાંભળ્યું હશે ને કે આનાથી તો વાત કરવાની, આના પાસે તો હંમેશા હર સવાલનો જવાબ હોય છે, વિચારવાની જરૂરત નથી પડતી, તરત જવાબ આપશે તમને. અને બીજો માણસ હશે તો ખામોશ રહેશે કે કેવી રીતે જવાબ આપો, કેવી રીતે શું બોલું. અલગ અલગ આપણા અંદર એબિલિટીઝ છે, અલગ અલગ લેવલ ઓફ એબિલિટીઝ છે, અને અલગ અલગ જાતના માણસો છે. એવી રીતે રૂહાનિયતના અંદર પણ આ પ્રિન્સિપલ અપ્લાય થાય છે કે અમુક માણસો હાજર દિમાગ નથી હોતા, અમુક માણસો હાજર દિમાગ નથી હોતા, તે લોકોને વાત ભૂલાઈ જાય છે, યાદ નથી રહેતું. અને બીજા જે હોય છે એ લોકો ધ્યાન દેતા નથી, સાંભળજો, ધ્યાન દેતા નથી, જેની વજહથી, અને ધ્યાન ના દે, એક તો ધ્યાન નથી દેતા, અને ત્રીજી વાત જે અલ્લામા સાહેબ કહે છે કે તમે ધ્યાન નથી દેતા, એની વજહ એટલે એવું છે કે બહુ મુશ્કેલ હોય છે ને તો લોકો ધ્યાન નથી દેતા, તો પછી એ મેમરીમાં રોકાતી નથી, એ જે રૂ જે રોકાવાની, જે ફોલ્ડરમાં જમા થવાનું જે એનું કામ હતું એ થતી નથી, તો ભૂલાઈ ગયું, એ રેકોર્ડમાં છે જ નહીં, કેટલું બી તમે એને રિકોલ કરો આવશે જ નહીં તમે. તો પછી સ્ટુડન્ટ શું કરે, ટીચરને પૂછી લે, ઠીક છે ને. તો આ જે છે આ 5વી सूरत છે. તો હવે અગર આપણે આ પાંચો सूरतને સિમ્પલી સમજીએ ને, તો પહેલું લેસન એને યાદ હતું, એક લફ્ઝ એને યાદ હતું, બીજું એ રિપીટ કર્યું, રટ્ટો લગાવ્યો તો યાદ આવી ગયું, ત્રીજું એ ધ્યાન કર્યું, વિચાર કર્યું તો યાદ આવી ગયું, પછી ચોથું જે છે એ ના તો આપણે ગલત કાઉન્ટિંગ કર્યા, પહેલે એને યાદ હતું, પછી બીજું રિપીટ કરવામાં આવ્યું, ત્રીજું એ ધ્યાન કર્યું,
અને પછી ચોથું જે છે એ રિકોલ કરવામાં આવ્યું, અને પાંચમું જે છે એ ટીચરથી પૂછી લીધું. તો જ્યારે આપણા માટે આ જે ચીજો છે એનો મકસદ શું છે, એનો મકસદ આપણે વાંચીએ અહીંયા. મકસદ છે ઝિક્ર ઇલાહી, એની યાદગીરી, ખુદાની યાદ. जिक्र इलाही के मायने खुदा की याद है जिसके कई पहलू और बहुत से दर्जात हैं. જ્યારે ઇમામ ફરમાવે છે કે યાદગીરી રાખવાનું કામ ઘણું જ કઠણ છે, એનો મકસદ એ છે કે યાદગીરી આટલું આસાન નથી, બધાએ કરી લીધી હોત. આ મુશ્કેલ છે કેમ કે એના ઘણા બધા આસ્પેક્ટ છે, એના ઘણા બધા દરજાત પણ છે. इनमें सबसे ऊंचा दर्जा वो है जहां याद इलाही मारिफत की रोशनी में की जाती है. સૌથી ઊંચો દરજો જે આપણે કોઈ કીધું કે અજંપિયા જાપ, ખબર છે એ ક્યારે થાય છે અજંપિયા જાપ? જ્યારે મારિફતનો એક લેવલ થાય છે, મારિફતનો એક લેવલ થાય છે ત્યારે નૂર પ્રાપ્તિ થાય છે અને અજંપિયા જાપ થાય છે. વગર ઇલ્મ જીભ પર zikr તો રહેશે, એને આપણે રટ્ટો કહેશું. જો આ ચીજ સમજાવવામાં આવેલી છે, કોઈ માણસો રટ્ટો કરે ને, રટ્ટો ઉપરની યાદગીરી છે, અંદરની યાદગીરી નથી. खुदा की मारिफत का नजरिया तो तकरीबन सारे मजाहिब में है, अलबत्ता इसकी तशरी में इख्तलाफ पाया जाता है. તો હર મઝહબ દુનિયાના અંદર છે, એમાં યાદીની તો વાત છે, પણ એ લોકોની જે સમજ છે એમાં ઘણા બધા આપણા અંદર ડિફરન્સીસ છે. बहरकैफ खुदा की मारिफत के बारे में कुरान हकीम का जामिउल जवामा इरशाद ये है कि अल्लाह ताला ने तमाम बनी आदम की रूहों से पूछा, अलस्तु बी रब्बिकुम कालू बाला 7/172, आया मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं? उन्होंने अर्ज किया कि या खुदावन क्यों नहीं. अब यहां पे हमको समझना है कि वो 5 सूरतों की बात क्या हो रही थी. वो बात ये है कि जब खुदा को याद करने हम बैठते हैं, हम जब इस रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं, तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और बहुत सारे दर्जात हैं. सबसे पहला दर्जा ये है कि हमको मारिफत में कि उसकी यादी रहे. और अगेन हमने कहा कि पूरी हर मजहब में ये बात है, लेकिन एक बात जो हमको गिनान में भी समझाई गई है, कुरान में भी समझाई गई है कि हमारी तमाम रूहें जो हैं वो इमाम से वादा करके आई हैं कि मौला हम तेरे साथ रहेंगे, तेरे याद ही में रहेंगे, तुझे ढूंढेंगे, तुझे शनाख्त करेंगे. कुरान के अंदर हमारी रूहों ने जो वादा किया था लिखा हुआ है 7/172 के अंदर कि अलस्तु बि रब्बिकुम काला. पूछा गया किससे? हमारी रूह से कि मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं? तो पता है रूहों ने क्या कहा? बेशक तू ही हमारा परवरदिगार है. क्यों हमको आज ये बात याद नहीं है? याद की 5 सूरतें हैं. याद को, उस याद को जो हमारी रूह में, आत्मा राम तुम्हें बड़ा गिनानी, ये याद, ये रूहें हमारी वादा करके आई हैं इमाम को. ऐसे ही हम इस्माइली मजहब में पैदा नहीं हो गए, लेकिन उस बात को याद करने के दर्जात हैं, उस बात को रिकॉल करने के लिए दर्जात हैं. और उस सफर को शुरू करने के लिए हमें इल्म, जिक्र, रट्टा, पहली बात, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, समझ आए ना आए, हिम्मत नहीं हारना है, याद रहे ना रहे, हिम्मत नहीं हारना है, करते जाना है, करते जाना है. क्योंकि पहला रास्ता, पहला जो है मकाम यही करते जाना है. नहीं समझ आ रही है बात, नहीं कुछ, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट, जस्ट डू इट. हमको क्या कहा जाता है? इबादत में तरक्की नहीं हो रही है, नहीं, जस्ट बी वेक अप एंड डू योर बंदगी. मौला फरमाते हैं डोंट वरी, देयर इज नो फेलियर, जस्ट डू इट. फर्स्ट स्टेप, राइट, जस्ट डू इट. हमको ये करना ही करना है, रट्टा. जब हम जिक्र करते हैं, जब हम रिपीटेशन करते रहते हैं, चाहे वो दुनिया बने या किताबों का इल्म हम बात कर रहे हैं, हम अपने ट्रू इल्म की बात कर रहे हैं, या हम इसमें आजम की बात कर रहे हैं, हम किसी भी जिक्र, क्योंकि जिक्र भी बहुत बड़ी कैटेगरी है, राइट, इसको रिपीट, दोहराना है, दोहराना है, दोहराना है. फिर क्या होगा कि हमारे अंदर जो रूहों के अंदर जो चीजें सेव्ड हैं, कब से? उस दिन से जब हम आलम अरवा में थे, हम जो वहां पर थे, जिस्म नहीं था हमारे पास, लेकिन वो स्टोर है हमारे आलम शख्सी में. आत्मा राम तुम्हें बड़ा गिनानी, वो सब स्टोर है हमारे अंदर. या तो वो अचानक याद आएगा, जो एक सूरत हम भूल गए थे गिने में, अचानक याद आएगा. तो अचानक तो कोई चीज होती नहीं है, जब तक उसकी रहमत ना हो तो अचानक तो होता नहीं है. तो कहां से अचानक हो गया?
जब हम रास्ते पे हम मुस्तहकम चलते हैं तो उसके फरिश्ते हमारी मदद करते हैं। फिर हम ध्यान जब करते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि मौला मुझे क्यों याद नहीं आ रहा, याद आ जाएगा। और जब हमको कोई चीज नहीं याद आती है तो इमाम के फरामीन, हमारे पीरों के गिनान, हमारे पैगंबर की किताब कुरान, तावील की किताबें हमको याद दिलाई जाती है जो हम भूल चुके हैं। ये 5 सूरतें हैं जो हमको जिक्र इलाही में कामयाब करेंगी, जो हमको इस्म आज़म की यादी में कामयाब करेंगी, जो हमको किताबें पढ़ने में कामयाब करेंगी। ये मकसद है ये 5 सूरतों को समझाने का कि याद के भी इतने सारे फॉर्म्स हैं और वो फॉर्म्स का ताल्लुक जो है जी बધી યાદી છે એનો તાલ્લુક જે છે આલમે ઝરથી છે। રિમેમ્બર, અગર તમે યાદ હોય બેતુલ ખ્યાલના ફરમાન ઇમામ સુલતાન ઉમર શાહના, ઇમામ સુલતાન ઉમર શાહ આલમે ઝરની વાત કરે છે કે જર્રા એવો જર્રા કે આંખોથી દેખાય પણ નહીં, ઝીણા ઇમામ ફરમાવે છે, આટલા ઝીણા કે આંખોથી દેખાય નહીં, એ આખા આપણા અંદર એક્ઝિસ્ટ કરે છે। પણ જ્યારે આપણે આ 5 કન્ડિશન્સને સમજશું અને આ 5 કન્ડિશન્સના અંદર પણ દરજા છે, જ્યારે આપણે કન્ડિશન મીટ કરતા રહેશું અને હિંમત નહીં હારશું ત્યારે એ પોતાના ફિરિશ્તોને મોકલશે અને એ પોતે આપણે ફરમાન દઈને સમજાવશે, આપણે વાંચશું અને આપણે યાદી આપણે વધારે ને વધારે પ્રેઝન્ટ થતા જશું અને યાદીમાં આવતું જશે। એટલે જ યાદગીરીનું કામ જે છે આટલું મુશ્કેલ છે। કેટલું મુશ્કેલ છે યાદગીરીનું કામ। મને ઉમ્મીદ છે કે આજે આપણે એની ઝલક મળી હશે કે કેટલા બધા અંદર ઓફિસ છે અને ફાઇલ્સ છે ને ફોલ્ડર્સ છે અને એના અંદર આપણને યાદ કરવું પડે છે। આ બધા પ્રોસેસીસ થાય છે। ये बात जरूरी है याद रखने की कि हमने ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लगता है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन उनके लिए आसान होती है जो हमेशा जिक्र और इबादत में मशगूल रहते हैं। ये किताब ही उनके लिए लिखी गई है जो जिक्र की गहरी हकीकतों को समझना चाहते हैं। रिमेंबर, हमने पढ़ा कि जो गहरी हकीकतों को समझना चाहते हैं उनके लिए ये किताब लिखी गई है। और ये हकीकत कहाँ से शुरू हो रही है? जब हमारी रूहों ने आलम अरवा में उससे वादा किया था कि बेशक तू ही हमारा परवरदिगार है, और आज दुनिया में आ गए हैं तो हमारा परवरदिगार हमें याद है। हमें ये समझाया जाता है, कहा जाता है कि हमको जो है याद करना पड़ेगा, उसको याद रिकॉल करना पड़ेगा। हमें तो नहीं याद है। बचपन से माँ बाप ने कहा बेटा या लेली करो, है जिंदा बोलो, दुआ पढ़ो, रट्टाफिकेशन, ऑल रट्टाफिकेशन। रेक्टिफिकेशन में भी जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं उनको खुद ब खुद चीजें याद आती हैं, खुद ब खुद चीजें याद आती हैं। राइट? किस तरह से? क्योंकि इमाम हमें याद दिलाते हैं। तो ये कुरान का रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिव्यू इट, हाईलाइट इट, क्योंकि ये हमारी रूहों ने वादा किया था 7/172। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे ये हकीकत रोशन हो जाती है कि रब और रबूबियत का बड़ा अहम और सबसे नाजुक इकरार लाइमी, नाशनासी और बेमार्फती की तारीखी में तो नहीं हो सकता था। ये बहुत बड़ी हकीकत और हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की भी बात है और शुक्रगुजारी की भी बात है और हिम्मत दिलाने की भी बात है कि खुदा की खुदाई में ऐसा नाइंसाफी नहीं होती। जब हमको कहा गया कि भाई तुम इसमें आज़म की इबादत करो और तुम इबादत कर सकते हो, तुम इमाम की शनासी हासिल कर सकते हो, तुम हकीकत को पहचान सकते हो, असल में वासल हो सकते हो, तो ये तमाम चीज़ें इसलिए हमको कही जाती हैं कि ये तमाम गिनान जो है वो हमारे आत्मा के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। हमारे अंदर वो आत्मा का नाम पता है क्या है इंग्लिश में? इंटेलेक्ट। रिमेंबर कि हम जो है वो अल्फाज में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन रियलिटी अगर हमको समझना है तो आत्मा का शब्द वर्ड जो है वो कुरान के कुलूब की तरह है। कुलूब का जो मायना बज़ाहिर जो है वो दिल है, लेकिन इसकी हकीकी मायना जो है वो अकल के। अकल के अंदर जो हमारी फाइल्स और फोल्डर और जो कैबिनेट है और वो बंद पड़े हैं, मिट्टी चढ़ गई है उसके ऊपर, हमको याद नहीं आता है कि हमने इमाम से इमाम के साथ थे, हम इमाम के साथ थे और इमाम की
शनाख्त में थे और इमाम के साथ हम दुनिया में आए हैं, लेकिन ये खुदा की नाइंसाफी नहीं है कि हमको कोई चीज ऐसी दे, कहे हमको कि याद करो, जबकि हमको पता ही नहीं कि वो चीज क्या थी। तो ऐसा हो गया कि खुदा ने हमसे झूठ बोला, ये बात होगी। हम खुदा को झूठा, अगर हम कंप्लेन करते ना कि भाई मुझे तो याद नहीं रहता है या हमारी तो तरक्की नहीं होती है, इसका मतलब पता है क्या होता है, क्यों मना किया जाता है कि ऐसा नहीं बोलो, सब्र और शुक्र करो। हम ये कह रहे हैं खुदा तू झूठा है, इमाम तूने हमको झूठ बोला या हमको हमको सही रास्ता नहीं बताया। क्योंकि इस बात को पढ़ें, आई वॉन्ट टू रीड इट दिस इन इंग्लिश, कि ये जिक्र एंड गाइडेंस। इफ अ ह्यूमन बीइंग हैज फॉरगॉटन दोज रियलिटीज एंड रिकॉग्निशन, हकीकत और मारिफत ऑफ प्री इटर्निटी अजल, एंड एम आई नॉट अलस्ट इन विच God's true recognition is hidden। ये हमने पढ़ा नहीं पढ़ा? हाँ, हाँ यही होना चाहिए। नहीं, ये वाला पैराग्राफ, माफी। This clearly demonstrates that the most important and most delicate confession of Lord and Lordship cannot be made in the darkness of ignorance, absence of knowledge and recognition, nor in accordance with divine justice was it proper to take witness from the souls of the children of Adam about the unseen realities of providence without fulfilling their physical, spiritual, and intellectual bringing. It cannot be true, मीनिंग के हमारा जो मौला है, हमारा जो आका है, वो इतना रहमान है कि वो हमारी जिस्मानी, रूहानी, अक्लानी तरक्की करवाता है हमको, और फिर हमसे कहता है कि तुम याद करो। वरना तो ये हुआ कि वो हमसे कुछ ऐसी बात मांगता है जो तो हमको याद ही नहीं है। लफ्ज याद, जिक्र का माना है कि हमको याद था और हम भूल गए, यानी हमारी मेमोरी में है, वो मौजूद है, लेकिन हमको याद नहीं है। और वो याद करने के लिए या तो उसको दोहराओ, उसको रिकॉल करो, या वो खुद ब खुद याद आए, या हमको उस्ताद या इमाम बता दे। यहाँ पे ये बात रिलेट करें कि अगर हम अल्लामा साहब की किताब पढ़ रहे हैं, तो क्यों अल्लामा साहब की किताब पढ़ रहे हैं? क्योंकि अल्लामा साहब ने इस्म आजम को कंप्लीट किया। उन्होंने यादगिरी पे इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, कुरान को पढ़ा, वजी दीन को पढ़ा, किताबों को पढ़ा, इतनी मेहनत की कि जो उनकी आत्मा में, जो इनके इंटेलेक्ट में जो चीज थी, जो हम सबके पास है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मौला नाइंसाफ करने वाला नहीं कि एक को दे और दूसरे को ना दे। वरना पीर, ये इमाम फरमान नहीं फरमाते कि अगर तुम चाहो तो तुम पीर बन सकते हो, तो क्यों हमको नहीं, हम पीर क्यों नहीं बन पा रहे हैं भाई? क्या कमी है हमारे अंदर? कमी उस मेहनत की है जो हम नहीं कर रहे हैं, कमी उस सुस्ती की है जो हम कर रहे हैं। खुदा का जो इंसाफ है, ये तमाम चीजें उसने हमें दी हुई है, यानी हमारे कॉन्शियसनेस में है। हमने सुजाग होके कॉन्शियसनेस में ये वादा किया है कि यस, कि तू ही हमारा आका और खुदा है। तो हमको क्यों याद नहीं आता है? क्योंकि जब हमको जिस्म दिया, और जिस्म से हमने फिर ये वादा इमाम को दिया कि मौला तन मन धन तारो, फिर जो हमारे अंदर जो सबमिशन को जो हमको करना है, जब हम नहीं करते, हमारा पूरा टाइम, हमारी पूरी एनर्जी, हमारी पूरी ख्वाहिशात, नफसानी ख्वाहिशात सारी दुनिया की तरफ है, तो फिर कहाँ से याद आएगा जो हमको भूल गया है? नहीं याद आएगा ना। તો મને ઉમ્મીદ છે કે આપણે સમજી રહ્યા છીએ કે અહીંયા જે કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ બધી જે હકીકત છે કે આપણે આપણાથી જ્યારે પ્રોમિસ લેવામાં આવ્યું હતું, પૂછવામાં આવ્યું હતું કે બતાવો તમારો ખુદા કોણ છે, અગર તમે રૂહ છો અને તમારો ખુદા કોણ છે, તો આપણે બધાએ, જેટલા ભાઈ બહેન આપણે છીએ અહીંયા, બધાએ કીધું હતું કે મોલા તું અમારો ખુદા છે। આજે આપણે કેમ આ વાત સમજ નથી આવતી? કેમ કે જે તન મહેનત, જે રિયાઝત, જે કસણી આપણે લેવી હતી કે આપણે યાદ આવે, જે બધું આપણા અંદર છે, જે પીર્યું આપણે કીધું આત્મારામ તમે બળા ગિનારી, મૌલા અલી કીધું કે તમે પોતાને નાનો નહીં સમજો, તમારા અંદર આખી કાયનાત છે। કાયનાત કેને કહેવાય? યુનિવર્સ કેને કહેવાય? આપણા અંદર છે તો છે ક્યાં ભાઈ? કેમ દેખાતી નથી, સંભળાતી નથી? તો જેવી રીતે જે ઝેરની મિસાલ આપવામાં આવે છે કે કેવી રીતે પોતાના 5 સેન્સીસથી એ મેમરીમાં ચીજો લીધી અને પછી જ્યારે ટીચરે શીખાડ્યું, તો 5 તરીકા છે। રિપીટ કર્યું તો યાદ થઈ ગયું, પોતે પોત યાદ આવી ગયું, ધ્યાન કરવાથી યાદ આવી ગયું, અને હું પાછું એક ભૂલી જાઉં છું, અને પછી ટીચરે પોતે બતાવી દીધું।
5 તરીકાથી ઈ આપણે જે યાદીનો જે લેસન છે, જે આપણે યાદ કરવાનું છે, એ શું યાદ કરવાનું છે? એની મારિફત જે આપણે ભૂલી ગયા છે. આપણું દુનિયામાં આવવાનું જે મકસદ છે એક જ છે, એની ઓળખ, એની મારિફત. બધું દુનિયામાં જે જંજાળ છે, બધું એક ડ્રામો છે, ચાલી રહ્યો છે, જે આપણે આપણું પાર્ટ પ્લે કરવાનું છે. પણ હકીકતના અંદર ये पार्ट प्ले करवाना साथ है, આપણે हकीकत ने नहीं भूलवाना. जैसे मैं मिसाल के लिए हमें एक स्टोरी सुनाई जाती है ना, कि एक बादशाह था जिसने जो है वो ये कहा कि भाई मैं तुमको एक दिन की बादशाह दूंगा अगर कोई मुझे ढूंढ ले. लेकिन उसने क्या किया, अपने महल के अंदर सर्कस लगाया और थिएटर लगाया और बहुत इंजॉयमेंट के सारी चीजें फैला दी, गेम्स और ये सब चीजें, मूवी, सब सब लगा दिया. सारी जब कौम आई, कोई मूवी देखने में लग गई, कोई गेम खेलने में लग गई, कोई सर्कस में बिजी हो गया, कोई कुछ में बिजी हो गया. एक शख्स था जिसको याद रहा, उसने बोला नहीं नहीं, ये तमाम चीजें तो ड्रामा है, मुझे तो ढूंढना है बादशाह को कि मैं बादशाह बनूं. सबके पास सबको प्रॉमिस याद था, लेकिन एक को याद रहा, बाकी सब भूल गए. सारी जो बात है वो यही है कि जब हम दुनिया में आए हैं, अगर हम याद करते हैं तो हमको याद आएगा. क्या याद करना है? जिक्र से याद करना है. तो ये चैप्टर, आज का जो लेसन था वो मुश्किल था कि इस बात को हम समझे और इसको अप्लाई करें अपने ऊपर, कि हमको बिला झिझक झिझक याद करना है, बस याद करना है. रिजल्ट आए ना आए, इसमें आजम को जपना है, इल्म को हासिल करना है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, कभी भी शिकायत नहीं करनी है, मेहनत को बढ़ाते जाना है, अपने अंदर शांति को लाना है. क्योंकि एंजाइटी के अंदर, हाई होई के अंदर ध्यान नहीं लगता है. बी प्रेजेंट, जो कॉन्शियसनेस है, बी माइंडफुल, बी प्रेजेंट, ये तमाम एक्सरसाइज जब करेंगे तभी हमारी यादी जो है वो बेहतर होगी. वरना तो इस जो भूला हुआ लेसन है वो हमको याद नहीं आएगा. तो अब अल्लामा साहब आगे चल के बताते हैं कि जिक्र और हिदायत का क्या ताल्लुक है. क्या ख्याल है, रोकना चाहिए कि पढ़ते रहें? क्या ख्याल है, क्या बोलते हैं आप लोग? तो बताएगा मुझे. ये लेसन मुश्किल था थोड़ा, राइट? जारी रखे आपा. जारी रखिए, चले. थैंक यू. जिक्र और हिदायत. जिक्र और हिदायत, अगर इंसान ने अजल और अलस्त के इन हकाइक और मारिफ को फरामोश कर दिया है, जिनमें अल्लाह ताला की हक्कानी मारिफत पिनहान थी, तो इसका चारा कार यही है कि वो खुदा और रसूल सल्लम और उलुल अम्र अलैहिस्सलाम की इताअत को बजा लाए, ताकि इन मरातिब इताअत की ज़ाहिरी व बातिनी हिदायत की रोशनी में जिक्र व इबादत और हुसूल मारिफत करने से रफ्ता रफ्ता हर चीज दोबारा याद आए. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. अब पहले तो हमने एक बच्चे की मिसाल दी, अब हमारी बात डायरेक्टली बात आ रही है जिक्र की और हिदायत की, गाइडेंस की. क्या गाइडेंस हमको बताई जा रही है? वो ये कि अगर हमको याद करना है कि शुरुआत कहाँ से थी, अजल कहाँ से था, अब कहाँ है, प्री इटर्निटी और पोस्ट इटर्निटी की जो बात हो रही है, कि रूह का सफर शुरू कहाँ है, रूह जाएगी कहाँ. अगर हमको ये चीजें याद करनी है, रियलिटीज एंड रिकग्निशन हमको चाहिए जो हम भूल चुके हैं, तो इसका बहुत आसान तरीका ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम. इताअत करो खुदा की, रसूल की और उलिल अम्र की. तो क्या होगा? हुस्न मारिफत करने से रफ्ता रफ्ता हर चीज याद आ जाएगी. अगर हम इमाम के फरामीन को बराबर मानते हैं, इल्म को हासिल करते हैं, जिक्र और यादगिरी में रहते हैं, तो कोई शक नहीं कि आत्मा राम तबे बड़ा गिनाए. जैसी हमारी मेहनत, जैसा हमारा दर्जा, ऐसी हमारी यादें होगी. वो जो चीजें हम भूल गए हैं वो तमाम हमको याद दिलाई जाएगी, हमारे ख्वाबों में, हमारे ख्यालों में, हमारे तसव्वुरात में. वो तमाम चीजें हमको दिखाई जाएगी कि कैसे हम इमाम के साथ थे उस जमाने में. कोई चीज हमसे छुपी भी नहीं रहेगी, कोई भी चीज हमसे छुपी भी नहीं होगी. तमाम जो पर्दे आंखों के सामने हैं वो सब हटा दिए जाएंगे. જ્યારે કોઈ કોઈને આગળ વધવું છે
અને ઇમામની ઇતાત કરે છે, જેવી રીતે આપણે દુઆમાં વાંચીએ છીએ ને આ પાર્ટ જે કીધું એ સેકન્ડ પાર્ટ, તો એને બધું આહિસ્તા આહિસ્તા યાદ આવશે, રફતા રફતા. રિમેમ્બર, it cannot be sudden, it has to be step by step. Patience is the key. फिर क्या फरमाते हैं, जैसा कि कुरान पाक का इरशाद है, फज़क्कर इन्नमा अंत मुज़क्किर, 88/21. उर्दू में पढ़ने में कभी कभी 88/21. बस ए रसूल आप याद दिला दीजिए, आप तो बस याद दिलाने वाले हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, खुदा रसूल से कहते हैं कि भाई तुम याद दिला दो जो भूल गए. खुदा का, पैगंबर का काम क्या है? वार्नर, नजीरन व बशीरन, हमको याद दिलाना. और आज वो काम इमाम का है. इमाम ने हमसे कहा कि याद करो. In this verse 88/21, Khuda Ta'ala is telling the Prophet that remind them what they have forgotten. And today it is Shah Rahim who reminded us in his first Farman that you need to remember. You need to stay in remembrance. Seek strength from your faith. Feel the presence of Imam. How are we going to feel his presence? Yadgiri se. Right? And remember कि जो रोल है इमाम का, वो warner and giver of the glad tiding, bashiran व naziran. Right? कुरान में जो है 2 टाइटल प्रॉफिट के हैं, वो इमाम के आज है कि वो वार्न करने वाला, याद दिलाने वाले हैं कि भूल नहीं जाना, और जो नहीं भूलेगा उसके लिए जन्नत के बागात हैं. इसका मतलब ये हुआ कि हज़रत सल्लम इस बात के लिए मामूर थे कि तमाम अहले जहान को राह हक की दावत व नसीहत करें और अपनी उम्मत के अफराद को हर वो ज़रूरी बात उनकी हैसियत के मुताबिक याद दिलाएं. हैसियत, पैसे की हैसियत नहीं कि ये गरीब है अमीर है, जिसकी जितनी मेहनत, क्योंकि जो उम्मत के अफराद हैं, हमने क्या पढ़ा, अल्लामा साहब कहते हैं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, 4 दर्जा. हमेशा जो सीखने वाले होते हैं, जो इमाम के मोमिनीन होते हैं, उनमें दर्जात होते हैं. पैगंबर को ये कहा जाता है कि आप दावत करो, नसीहत करो, जैसा जिसका दर्जा हो उस मुताबिक. दर्जात को ધ્યાન में રખતે हुए આ ઇલ્મ છે, આ દરજાતમાં દેવામાં આવે છે. બધાને બધું ઇલ્મ અગર દઈ દે તો એવું થઈ ગયું કે બચ્ચાને નિહારી ખરાવી દીધી, એમ નથી થઈ શકતું. પગથિયા જેની જેટલી એબિલિટી હોય એના હિસાબે જ આગળ વધારવું. તમને અગર યાદ હોય, જે આપણે 5 યાદ કરવાની વાત કરી, એમાં 5ના અંદર પણ આપણે દરજાતને સમજતા હતા કે કોઈ ગેરહાજર છે, રાઈટ, જેનું ધ્યાન રાખતા જ નથી, લોકો એબ્સેન્ટ માઇન્ડેડ જ રહે છે, પોતાના વિચારોમાં જ રહે છે. ઇલ્મ ક્લાસીસમાં આવે છે મિસાલની તौर પર, અને ધ્યાન તો ક્યાંક બીજે હોય છે. ફીલ ગુડ કરવા માટે આવે છે, પછી પાછળ જઈને ક્યાંય વાંચતા નથી. જમાતખાને તો જાય છે પણ ધ્યાનમાં કાંઈ નથી. ઇબાદત તો કરે છે પણ ધ્યાનમાં કાંઈ નથી. તો હર જગ્યા ઉપર દરજાત છે. જેવું જેનું દરજો હોય છે એ તેવી એની તરક્કી થાય છે, અને તેને તેવું ઇલ્મ દેવામાં આવે છે. પણ જ્યારે પેગમ્બર દુનિયામાં આવ્યો તેને કહેવામાં આવ્યું હતું કે તમે હર ફર્દને આ ઇલ્મ આપો અને યાદ દેરાવો. શું કરો? એ લોકોની हैसियतના मुताबिक તમે याद देराવો, हैसियतના मुताबिक. जो ये भूल चुके हैं, यहाँ तक कि रोज अलस्त की हकीकतों मारिफतों को भी, मगर कानून ये है कि असरार मारिफत का इल्म दर्जा बदर्जा दिया जाता है. असरार जी राज शे मारिफतना, जो राज है मारिफत के, वो दर्जात में दिए जाते हैं, वो एक साथ कभी भी नहीं दिए जाते. बहुत सारे इम्तहानात दिए जाते हैं. आपको पता है कि जब टीच भी करते हैं टीचर, तो जो है वो इम्तहान लेते हैं. उस्ताद जो है, इमाम जो है, वो हमारा इम्तहान लेता है, और हम इम्तहान पास करते हैं कि कंप्लेन करते हैं. जब कंप्लेन करते हैं आगे नहीं बढ़ सकते हैं. तो कंप्लेन, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर जो रूहें हैं, जो कंप्लेन की रूह है ना, कहाँ से कंप्लेन की रूह? कार्नल सोल की रूह है, हैवानी रूह है. वो इतनी ताकतवर हो गई है कि वो बार बार कंप्लेनिंग को याद में लाती है, आगे लाती है, कि जिक्र की, मेहनत की, हिम्मत की रूह पीछे से आ ही नहीं सक रही है, कंप्लेन की रूह आगे आ जाती है.
रिमेंबर सब फोल्डर में फाइल सेट है, राइट? तो कंप्लेन की रूप फौरन से आ गई, क्यों, ऐसा क्यों, मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे, अरे मुझे व्हाट इज दैट? ये हमारी नफ्स है। सबर की रूह जो वो पीछे है वो आगे आ ही नहीं सक रही है। ये इंटेंशनली हमको आदत डालनी पड़ती है। कार्नल सोल जो हमारी नफ्स है, हमारा को सप्रेस कैसे करना होता है, उसको हमको आदत डालनी पड़ती है कि तू कितना भी कंप्लेन कर, आई विल नॉट लिसन टू यू, आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन, I have to just do, and I know that struggle is my duty and he will give me the victory or not. It is up to him. Do we have that level of iman? If we have that, अगर हमारे पास ये है, तभी हमको वो राज मिलते हैं दर्जा बदर्जा, वरना वो राज नहीं मिलते हैं हमको। एक हद तक तरक्की होगी, उसके बाद फिर रुक जाएगी, क्योंकि हर तरक्की के बाद इम्तहान है, हर तरक्की के बाद मेहनत है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी तरक्की में खुश है तो हम वहीं अटक जाएंगे। क्या हमको आगे बढ़ना है तो हमने कितनी मेहनत की? तो ये तमाम बातें जो है वो हमको सीखना और समझना है। और फिर अहले जिक्र, तो ये एक नया टॉपिक शुरू होता है, तो मेरे ख्याल से रुकना चाहिए, क्योंकि आज का लेसन बहुत डिफिकल्ट भी था। तो लेट्स सी कि अगर हमारे पास सवाल जवाब हैं तो वो करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मुश्किल चीज़ें हों तो वो रह जाए। कोई भी बात अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो आप मुझे बिल्कुल बताएं, क्योंकि आई डोंट वांट टू लूज योर इंटरेस्ट। It was a difficult lesson. Let me tell you, it was difficult. So if you have any questions or comments. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो वाकई में जो ये कॉन्सेप्ट है जो यादगिरी के हिसाब से हमने किया, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम बाकायदगी से इन चीज़ों के जो हमारे कार्नल सोल का जो नफ्स हमारा का जाल है उसमें फंस जाते हैं। और बहुत ही अच्छे से जो आपने ये समझाया कि हमारा जो यादगिरी का जो सिस्टम है, जो हमने बताया, मौला ने हमें जो बताया है, जिस तरीके से अच्छे से अल्लामा साहब ने भी इसको एक्सप्लेन किया कि यादगिरी का काम जो है वो काम मुश्किल है, लेकिन हम पर ऐसा कोई भी काम नहीं डाला गया जो हम नहीं कर पाते। तो बहुत ही उसमें सोचने की बात है कि क्यों हम नहीं कर पाते, उसमें हमारी जो है वो कहीं हमारे एक्सक्यूजेस है, या कहीं हमारी जो है वो गलतियां हैं, या हमारी कमी है जिसको हमें पूरा करना होगा। तो बहुत ही अच्छे से जो अचानक से जो याद आ जाता है या उसको दोहराने से, एंड बहुत ही अच्छा लगा ये बात को समझ के और सोच के कि हम अगर कंटिन्यूस उस नीयत से दोहराते रहें कि या मौला ये मुझे चीज़ें याद हो जाएं, तो उस दोहराने का भी जो है वो अलग ही जो है वो उसका मयार हो जाता है, क्योंकि हम उस इंटेंशन के साथ उसको दोहरा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा भी जो है वो हमें सामने नज़र आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ही जो है इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। एंड बहुत अच्छे से आपने जो अलस्त के बारे में भी बताया कि कोई वादा जो है वो खुदा इस तरह नहीं ले सकता अगर हमें मालूम ही ना हो उसके बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपने समझाई हैं, आई थिंक उसको दोबारा सुन के, समझ के और बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। हमारे पास यहाँ चैट में साथियों के कुछ कमेंट्स और सवाल हैं। Farida Saba says, Ya Ali Madad, one of the humble understanding for this third and fourth form of the remembrance that comes to our mind may be perceived as intermittent divine reminders or calls from the divine particles embedded within us for continuing the forgotten divine remembrance in the form of particular tasbihat or ginan verses, etc., which we used to repeat in recent past or even in back times, to be brought into our consciousness. This divine reminder is to make us engage in the exercise of continuous reflection in order to internalize this divine remembrance actively in our consciousness, for making it a firm habit, which eventually becomes effortless, ongoing, loving remembrance. Good. Yeah, it's a reflection. So shukran, Mawla. Niyama Saiba. Go ahead. Niyama मैंने Saiba. आप क्वेश्चन, जी यास्मीन, मैंने आप Sorry, क्वेश्चन, sorry. हाँ हाँ बोलो बोलो। Niyama Saiba. जी No problem. Bolo.
હા કાંઈ ક્વેશ્ચન બોલતા હતા? હું નવીન સભા વાંચી રહી હતી તો મને કરીમાનો ક્વેશ્ચન દેખાડો. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. કરીમા અહીંયા કહે છે કે કેન યુ પ્લીઝ એક્સપ્લેન મોર વોટ ઇઝ મેન્ટ બાય અલ્લાહ ડીડ નોટ આસ્ક એઝ એમ આઈ નોટ યોર લॉर्ड વિદાઉટ ફુલફિલિંગ फिजिकल स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल अपब्रिंगिंग फर्स्ट. आ क्वेश्चन जी उर्दू में समझना पड़ेगा पहले हमको कि खुदा ने, अल्लाह साहब कहते हैं कि खुदा ने ये सवाल जो है पूछा नहीं जब तक कि हमारी जिस्मानी, रूहानी और अक्लानी तरक्की ना हो. इसको गौर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खुदा ने हमसे उस वक्त तक नहीं पूछा जब तक हमारी जिस्मानी, रूहानी, अक्लानी तरक्की नहीं होगी. तो तरक्की तो नहीं हुई है हमारी जिस्मानी. अगर एक तरीके से देखें तो हम कहें हम तो इल्म हासिल कर रहे हैं. तो ऐसा बात का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि जब हम आलम अरवा में थे, इमाम के साथ थे, रूहों की पीक पे थे, हमारी रूहानी तरक्की पीक पर थी, और जब हमसे पूछा गया तो हमने जो है वो ये वादा लिया, यानी कि हमारी मारिफत पूरी थी, कंप्लीट थी. लेकिन जब दुनिया में आते हैं और दुनिया में जब हमें जिस्म मिलता है और हम भूल जाते हैं तो हमको दोबारा ये कहा जाता है कि याद करें. आप भूल गए हैं, याद करें. और जितना जो याद करने में मेहनत लगाता है उसको इतना याद आता है, और उसका जो इम्तिहान है उसी हिसाब से होता है. इसकी मैं मिसाल दूं आपको कि अगर कोई दुनिया में लग से कि कोई दुनिया में बीमारी पता चलता है कि भाई किसी को कोई बीमारी है, कैंसर है, कुछ है, राइट, और इल्म के रास्ते में है, और वो पूछते हैं कि भाई क्यों ऐसा मेरे साथ, मुझे क्यों, मैं तो खुदा का नाम ले रही थी, मैं तो खुदा को याद कर रही थी, मुझ पे बीमारी क्यों आई, मुझ पे ये इम्तिहान क्यों आया? इम्तिहान उसकी आदत है, राइट, इम्तिहान उसकी आदत है, वो कहता है कि मैं आजमाऊंगा. और जब हम इम्तिहान को उसकी रहमत के तरीके से नहीं समझते हैं और हम कंप्लेन करते हैं तो क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि हमारी तरक्की इतनी ही आ, आ, हुई जितना कि हम बर्दाश्त कर सके. हमने अपने आप को आगे के रास्ते पे नहीं डाला, यानी कि ये समझते हुए, जानते हुए कि भाई वो मुश्किलात हमको भेजता है और वो खुद ही मुश्किल कुशा है, तो इम्तिहान इतना ही होगा, इसी पे हम रहेंगे. इसके मुकाबले में जैसे हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि अल्लामा साहब जो है वो प्रिजन में थे 40 डेज तक, राइट, 40 दिन तक ना खाना, ना पानी, ना कुछ. क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं ऐसा इम्तिहान? नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है भाई. एक दिन खाना ना मिले तो परेशानी, पानी ना मिले तो मुश्किल. ये तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 40 दिन. चूंकि उनकी मारिफत उस मकाम तक पहुंच गई थी कि उनसे ऐसा इम्तिहान लिया. तो कहने का मकसद ये है कि एक तो जो हमने वादा किया वो आलम अरवा में किया, लेकिन जब दुनिया में आते हैं जितनी हमने मेहनत की है उसी हिसाब से वो हमको पूछता है, इसी हिसाब से, हमारी हैसियत, हमारी तरक्की के हिसाब से. जो जितना आगे की मेहनत करेगा इतना वो करीब इमाम के पहुंचेगा. तो ये एक ऐसी बात है कि इसको 2 लेवल पे समझना पड़ेगा. एक तो ये कि वो कभी भी ऐसा नहीं करता है कि पहले हमको ऐसा मुमकिन ना बनाए कि हमको इल्म ना दे, हमको समझ ना दे और हम पे इम्तिहान भेजे. हमको पहले वो समझ देता है, अकल देता है, जिस्म देता है, हर चीज की समझ के साथ हमको देता है. इसके बाद हमसे कहता है कि देखो तुम याद करो. आपको पता है ना, बच्चे जो गुनाह करते हैं उनका कोई मसला नहीं है, बच्चे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है. लेकिन जब एक जवान हो जाता है जिसको पता होता है कि सही गलत क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, अगर हमने इमाम से वादा किया है कि हम इसमें आजम की इबादत करेंगे, नहीं सोएंगे और फिर सोते रहते हैं, तो इसमें इमाम का कसूर है कि हमारा कसूर है? तो ये तमाम मिसालें हैं ये समझाने की कि वो हमारे लिए जिस्मानी खुराक, रूहानी खुराक, अक्लानी खुराक मुहैया करता है. इसके बाद सवाल करता है, इसके बाद पूछता है. पहले वो हमारे लिए हमको सब कुछ देता है, इसके बाद हमसे इम्तिहान लेता है. ऐसा नहीं होता है कि वो ना इंसाफ है. मजे की बात यह है कि जब हम अपने बातिन के सफर को देखते हैं, जब हम अपने अंदर की दुनिया को पहचानने की कोशिश करते हैं, तो उसने हमको हर चीज दे रखी है. लेकिन क्या हो गया है
कि दुनिया के सामने दुनिया की चीजें हैं, उसकी में हम ऐसे खोए हैं कि हम हकीकत को जो हमारे अंदर हाजिर और मौजूद है उसको भूल चुके हैं। इमाम हाजिर और मौजूद है, फिर हम कंप्लेन करते हैं या हम शिकायत करते हैं या गुनाह के काम करते हैं। अगर इमाम हाजिर और मौजूद है, उसके देखते हुए हम कैसे हम ऐसे काम करेंगे? लेकिन हम करते हैं। क्यों? हमको याद नहीं है कि इमाम हमारे सामने मौजूद है। इमाम हमको देख रहा है, इस वक्त भी हमको देख रहा है, हर एक को। इमाम यहाँ हाजिर और मौजूद है। क्या हम हमारे ख्यालात को पकड़ते हैं कि भाई गलत काम नहीं करना है? तो ये तमाम चीजें इमाम हमें पहले इनायत करते हैं, फिर इम्तहान लेते हैं और फिर हमारी तरक्की होती है। तो एक मकाम नीचे से ऊपर जाने का है, उस चीज से समझना है, और एक ऊपर के मकाम से इस बात को समझना है। तो इस एक ही बात के अंदर भी दर्जाती समझ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए कि जब हम यूं सफर कर रहे हैं तो हमको इस बात को ऐसे समझना है, लेकिन इल्मुल यकीन पे हम ऊपर से नीचे भी समझ सकते हैं। ये दोनों ही बातें दुरुस्त होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जी यास्मीन, आप कुछ पूछ रहे थे। બહુ જ ફાઇન રીતે આ ટોપિક છે, અમે બધાને પ્રોબ્લેમ થાય છે. રિમેમ્બર, રેકોગ્નાઇઝ, રી એટલે અમે પેલા વી were there, that's why we are doing remember, recognize, right? So we knew that person. જે મોલા બાપાએ કીધું ને કે who is your lord, તમે અમે હા પાડે ને એનો સાથી આવ્યા. હવે અહીંયા જરા વધારે સમજાવી શકો? સુલતાન મોહમ્મદ શાહ ઈ કહેતા હતા કે મારા ફરમાન તમારા રૂને પહોંચાડો અને યાદગીરીનું કામ કઠણ છે. તો તમે જરાક વધારે સમજાવો. અને હમણાં શાહ રહીમ કહે છે કે ફીલ માય પ્રેઝન્સ, ઈ જ કહે છે. તો આજે આ અમને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ તમને પાછો લઈ આવ્યા અમારા પાસે કે આ બે ચીજ કયો છે. અને સુલતાન મોહમ્મદ શાહ જે તમે અમને કહેતા હતા કે અમને મહેનત કરવાની છે, કારણ કે આ બધું અમને આવડે છે, બટ ઇટ ઇઝ ઓલ ઇનસાઇડ. આત્મારામ તું તો બડા જ્ઞાની છે. તો સુલતાન મોહમ્મદ શાહના ફરમાનમાં કહે છે કે હિંમત વાળો રૂહ જલ્દીથી દરિયામાં મળે છે. રાઈટ, હિંમત વાળો રૂહ જલ્દીથી દરિયામાં મળે છે. તો આપ જરાક આપ સમજાવી શકો ને કે સુલતાન મોહમ્મદ શાહ કહે છે તમારા ફરમાન રૂહને પહોંચાડો. દરરોજ ઈ ક્વેશ્ચન, મને ન ખબર, મારા રૂહને હું ઓળખતી નથી તો કેવી રીતે રૂહને પહોંચાડું? ને પછી શાહ રહીમ કહે છે ફીલ માય પ્રેઝન્સ. અને અમે દુઆ દરરોજ બોલીએ છીએ હાજરીલ મોજૂદ, યેટ વી આર નોટ કોન્શિયસ ઓફ ધેટ. હા, તો હું તમારો સવાલ સમજી રહી છું યાસીનબેન, પણ જો એને સમજાવવા માટે જે છે ને, આપણે ફાઇલિંગ કેબિનેટની આસાન મિસાલ છે, યા કમ્પ્યુટર જે લોકો વાપરે છે એ લોકો જોવે છે કે કમ્પ્યુટર એક લેપટોપ છે, એમાં ક્લાઉડની સ્ટોરેજ છે. આ બધી મિસાલો જે છે ને દુનિયા અંદર, વર્લ્ડની મિસાલો, એકચ્યુઅલી આ રિફ્લેક્શન છે આપણી જાતની. બિલીવ ઇટ ઓર નોટ, whatever we see in this world, right, in terms of computers, or take simple example of filing cabinet, it is a reflection of what is already existing within us. એનો મતલબ શું છે કે જ્યારે તમે કહો છો ને કે યાદગીરી રાખવાનું કામ ઘણું જ કઠણ છે, લિટરલી થિંક ઓફ અ ફાઇલિંગ કેબિનેટ. રાઈટ, 5 ડ્રોવર છે અને હર ડ્રોના અંદર ફાઇલિંગ સેટ છે. હર ડ્રો, ઉપરનો ડ્રો છે, નીચેનો ડ્રો છે, આ બધું સેટ છે. અને જેટલું અંદર મટીરિયલ છે એ બધું આપણી યાદીમાં છે. પણ જ્યારે આપણે દુનિયામાં બદન લઈને આવ્યા છે તો એ ફાઇલિંગ કેબિનેટ આપણા અંદર છે ને આપણે એને ભૂલી ગયા છે. અને આમાં જે મહેનત છે કેબિનેટને ખોલવાની, ફાઇલને ગોતવાની, અને પછી આ કેબિનેટ પછી એ કરવાની છે. જ્યારે આપણે એ મહેનત નથી લેતા તો આપણા અંદર જે આલમે ઝર છે અને કયા ઝર્રાના ઉપર જે નોલેજ છે, અને રિમેમ્બર કે એ ઝરો જે છે એ કોન્શિયસ છે કે અનકોન્શિયસ છે? એ ઝરો નુરાની ઝરો બની ગયો છે કે ખાલી ઝરો છે? તો ઝર્રા ક્યારે નુરાની ઝરો બને? જ્યારે ઝિકરની ખોરાક મળે, ઇલ્મનો ખોરાક મળે. આ જે ઝર્રા છે મતલબ શું છે? એ ફોલ્ડર છે. આ બધા ફોલ્ડર છે જે ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટ કરે છે. જ્યારે તમે મિસાલ, તમે શારહીમને વાત કરી કે યુ ફીલ માય પ્રેઝન્સ, રાઈટ? તો ફિલિંગ આપણે કહીશું, આપણે ફિલિંગને કેવી રીતે સમજાવે, રાઈટ? કે આપણે ઝેડની મિસાલ કે નાનું બચ્ચું છે, એ મા બાપને ઓટોમેટિકલી લવ કરે છે. ખબર છે કેમ? કે એ ફીલ કરે છે
કે મારા મા બાપ મને પ્યાર કરે છે. હું પડતો હોઈશ તો મને મારા મા બાપ તરત પકડશે. મને ભૂખ લાગશે તો તરત મને મારા મા બાપ મને ખાવાનું ફરાવશે. તો એ ફિલિંગ એના અંદર સ્ટ્રોંગ થતી જાય છે કે અગર મને કોઈ પર ભરોસો છે, મને કોઈની મોહબ્બત પર યકીન છે, તો એ મારા મા બાપ છે. મા બાપ જરાય આજ્ઞા જાય તો બચ્ચા રોવા માંડે કે મને મા બાપ નથી દેખાતા. રાઈટ? એ લિટરલી એક્સપિરિયન્સ આફ્ટર એક્સપિરિયન્સ આ યાદી એના દિમાગમાં બેસી જાય છે. આંખોથી, મોઢાથી, કેમ કે ભૂખ લાગે છે તો તરત માં દૂધ આપે છે. કાનથી માં ગાતી હોય, બાપ પ્યાર કરતો હોય. હા, ટચથી મા બાપ પ્યાર કરતા હોય. એ યાદી એના બ્રેનના અંદર, એ ફાઇલ કેબિનેટ અંદર સેવ થઈ જાય છે. અને જ્યારે એને કાંઈક ડર લાગે છે, ભૂખ લાગે છે, તને ખબર છે મને જરાક અવાજ કરવાની છે, એ અવાજ કેવી રીતે કરે છે, એ શું કરે છે, એ ફાઇલ કેબિનેટના અંદર એ જે ફાઇલ કાઢે છે કે મારી માને મને બોલાવવું છે. હવે એ ફાઇલ, આ તમે બચ્ચાની મિસાલ સમજો છો, ફાઇલ કેબિનેટને સમજો છો. હવે આપણે અગર આપણી મિસાલ લઈએ તો એવી જ રીતે આપણા અંદર રૂહ છે. એક નહીં, બે નહીં, મિલિયન્સ ઓફ રૂહ છે. ઝિકરની રૂહ, ઇલ્મની રૂહ, બધી રૂહ આપણા અંદર છે. એની શનાખની રૂહ બધી અંદર છે. જ્યારે શાહ રહીમ કહે છે કે તમે ફીલ કરો. શું કામ આપણે ફીલ નથી કરી શકતા? આપણે કેમ યાદ નથી રહેતું ને આપણે કહીએ છીએ આમાં આટલી તકલીફમાં, હું તો બીમાર છું, આ તકલીફ ને આ મુશ્કેલી ને આ છે મારા સાથે ને આમ છે. અને ઇમામ તો મુશ્કેલ કુશા આપણે સાથે છે, હંમેશા આપણે સાથે છે. તો પ્રોબ્લેમ એ છે કે ફાઇલ કેબિનેટ જે અંદર છે એને આપણે એક્સેસ નથી કરતા, એને આપણે પકડતા નથી. જો જ્યારે બચ્ચાને ભૂખ લાગે છે તો કેવી રીતે એક્સેસ કરે છે? રાડા મારશે, રોશે, આંખોથી આંસુ જશે. આપણે શું શીખવાડવામાં આવે છે? અગર તમારાથી તમે જિકર કરો છો, જીભથી બોલો છો, આંખોથી વાંચો છો, કાનથી સાંભળો છો, હજી બી તમે એક્સેસ નથી કરી શકતા, ગિરિયાવઝારી કરો, રોવો રોવો રોવો, બોલાવો. આપણે સમજાવવામાં આવે છે કે જો આ તરીકા છે એને બોલાવવાનો, એ ફાઇલને, એ રૂહોને એક્સેસ કરવાના. તો જેટલા ઝર્રાત આપણા અંદર છે, એ ઝર્રાત જે છે, જે સૂતેલા છે, મધોશ પડેલા છે, રહેવાની સોલ જે છે કબજામાં કરેલી છે, એને ઉઠાડવા માટે ને જગાડવા માટે જે આપણે મહેનત લેશું જિકરથી, તો હિંમતની રૂહ છે ને તાકાત મળશે. જેવી રીતે મેં કીધું ને, દાખલો આપ્યો કે જેના પાસે હિંમત છે તરત એ પૂગી જશે. તો એ હિંમતની રૂહ છે ક્યાંય? નીચે ફાઇલિંગ કેબિનેટ અંદર નીચે પડેલી છે, ધૂળ ચડેલી છે અંદર. એને જ્યારે બોલાવશું, પુકારશું, કેવી રીતે બોલાવશું? યાલી 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 યાલી, ધ્યાન કરશું. અગર મારા અંદર હિંમતની રૂહ છે તો કેમ મારા અંદર એટલી ના હિંમતી છે? મારા અંદર હું છે ને, હવે હું મહેનત કરીશ અને મને કોઈ તકલીફ થશે ને તો હું આદત કરીશ કે હું કમ્પ્લેન નહીં કરીશ, હું શુકર કરીશ. અંદરથી પીડા થાય છે, મારી આદત કમ્પ્લેન કરવાની છે, મને ગુસ્સો આવે છે, મને આમ આ થાય છે, ઓલું થાય છે, પણ છે ને હું કોન્શિયસ રહીશ, પ્રેઝન્ટ રહીશ ને હવે હું નહીં કરીશ અને હું યાદ કરીશ ઇમામને. આ છે સિમ્પલ રિફ્લેક્શન, ડિસિઝન મેકિંગ, ઇન્ટેન્શન અને ચેન્જ ઓફ બિહેવિયર. આ ચેન્જ કર્યું મતલબ શું કર્યું? કારણ સુને તમે કીધું તારી વાતને હું ન માનું. ફાઇલિંગ કેબિનેટથી કરી થયા એ જે રૂના ઝર્રાત હતા એ નુરાની બનવા માંડ્યા. આ બહુ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે, પણ આવી રીતે કરતા 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 કતરો કતરો સરોવર થાય. આવી રીતે જ્યારે મોમેન્ટ આદતો પાડે છે તેના અંદર બદલાવ આવે છે. અને જે આખી ફોજ છે, આપણે કેટલા બધા લેક્ચર કરેલા છે કે આર્મી, ખુદાની આર્મી અને શૈતાનની આર્મી, આ બે ચીજો કુરાનના અંદર છે. હિઝબુલ્લાહ એક્ઝામ્પલ દીધેલી છે કે ખુદાની આર્મી છે ને અને શૈતાનની બી આર્મી છે, અને બે આપણા અંદર છે. ખુદાની આર્મી એના ફિરિશ્તા અને શૈતાનની આર્મી. કેને આપણે દાવત આપીએ છીએ? જ્યારે આપણે શાંતિમાં બેસું, જિકર કરશું ને કહેશું કે યા મોલા તારા ફિરિશ્તાઓને મોકલ ને કે મારી મદદ કરે. ઓ ફરિશ્તા, તમે મારા અંદર છો, તમે સાંભળો છો, હું જિકર કરીશ, તમે પ્લીઝ મારી મદદ કરો, અને હું તકલીફમાં છું, મારી મુશ્કેલ આસાન કરો, મારા મોલાની મને યાદીમાં રાખો. મને તો ગમતું નથી, મને તો આમ થાય છે, હું તો કમ્પ્લેન, ખુદા તો મારાથી રાજી જ નથી થતો, હું તો કરું છું. તરત તમે તો કાર્નલ સોલને ખુદા બનાવી લીધું, તો ક્યારે તરક્કી થાય? આ બધું કોન્શિયસનેસ, અવેરનેસ ત્યારે આવે છે જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ, પલ્સ ચેક જે આપણે વાત કરીએ છીએ ને, આ બધું ઇન્ટર રિલેટેડ છે. તો યાદી, જે 5 ફોર્મ છે યાદીના, આ બધા અગર આપણે જો વિચાર કરીએ, રિપીટેશન,
પોતે પોતે રિપીટેશનથી યાદ થઈ ગયું, પોતે પોતે યાદ આવી ગયું, રિકોલ કર્યું તો યાદ આવી ગયું, ધ્યાન કર્યું તો પછી ધ્યાનમાં યાદ આવી ગયું, અને પછી ઇમામે બતાવી દીધું. આ બધા ચીજો જે છે આપણાથી લાગતી વળગતી છે. તો મને ઉમ્મીદ છે કે કોશિશ કરવા સમજાવવાની મને ઉમ્મીદ છે કે કંઈક સમજ આવી રહ્યું છે. શુકર મોલા, બહુ ફાઇન રીતે સમજાવ્યા ને હવે મને સમજ પડે છે કે તમે દરરોજ ગિરિયા ઝારી કયો છો કે ટીયર્સ લઈ આવ્યો. જેવી રીતે નાનો બચ્ચો બા બાપને બોલાવે છે ને કેવા દોડે છે, તો આ તો અમને તો 100 ગણું વધારે ચાહે છે. તો ઈ અમે જો કરીએ તો ઇટ મેક્સ સો મચ સેન્સ. શુકર મોલા. તમે મને યાદ દિલાવ્યું ઇમામ સુલ્તાન શાહનું ફરમાન કે જ્યારે બચ્ચું માથી બિછડી જાય છે, અલગ થઈ જાય છે, તો એ રડે છે કે માને પાસે જઈ પહોંચું. એવી રીતે તમે પણ રડો. તો લિટરલી આપણે અગર ગિરિયાઝારી નહીં કરશું, ગિરિયાઝારી કરવાથી શું થશે? જેટલી રૂહ જે સુતેલી પડેલી છે, નિંદરમાં છે, દુનિયાના શોખમાં, દુનિયાની ખ્વાહિશમાં છે, બધી ચીજ દુનિયાની ખ્વાહિશમાં છે, એ લોકો તરત મરવા માંડશે, નીચે જવા માંડશે, અને જે આપણી જે એન્જેલિક રૂહ છે, કેમ કે ગિરિયાઝારીથી તરત સફાઈ થશે, તરત એ લોકો લાઇટ થશે અને ઉપર આવશે, અને પછી આપણા સાથી, આપણા ફ્રેન્ડ્સ, એ લોકો હંમેશા આપણા સાથે રહેશે. તો પછી આપણે અહીંયામાં નહીં થશું ને ડાયરેક્શન અંદર. ગિરિયાઝારી એટલે જરૂરી છે. સો થેન્ક યુ ફોર રિમાઇન્ડિંગ મી. Alhamdulillah. There's a beautiful reflection of Farida Saba. So friends are encouraged to go ahead and please read it. She does talk about a few things, Yamat Saba, with obedience and sacrifices and doing zikr and all of that. The last part I would read, inshallah, applying all of these small steps, we will be able to get the miracles of tajarbat, tawilat, and tasawurat in our personal world. And will we be able to remove veil of spiritual, intellectual treasures hidden within our souls? So if you're asking that question, I am not the one to answer. Maula Papa has given us the answer, right? जब इमाम फरमाते हैं कि आप पीर और पैगंबर बन सकते हैं, तो बेशक हम बन सकते हैं, बेशक बन सकते हैं. तो कैसे ये हकीकत मुमकिन नहीं होगी हमारे लिए कि हम पर्दे नहीं हटा सकते? हमारे पीरों ने फरमाया ना गिनान में कि खोलो पर्दा सनमों को देखो. तो वो पीर तो खोल चुके थे. वो किसको कह रहे थे? हमें कह रहे थे, हमें समझा रहे थे. तो हमारे अंदर ये ताकत है कि हम उन पर्दों को हटाएं और नूर की तजल्लियात को देखें. बेशक हमारे अंदर ये ताकत है, इंशाअल्लाह. Alhamdulillah. And there are quite a few Gnanic references friends have posted. Not going to read all because I'm going to butcher it, but I know the first line, so friends can actually look for themselves also. એજી સેઠ કહે તમે સાંભળો વાણોતર અને વર્ણન જરૂર કરી લાવજો. yes. વર્ણન જરૂર કરી લાવજો. Be a good traders or businessman, right? Earn good earnings. ઘોર અઘોરમાં तू बही दिन होता तूने घना घनाया वेगना उगरिया. मुनीरा, you need to read it for us, right? इंग्लिश में बहुत मुश्किल होती है ट्रांसलिटरेशन को पढ़ना. And then another one is એજી દૂર तूने घड़िए घड़िए विघने उगारिया. Subhanallah, see how beautiful you read. पूरा पढ़े. कॉल કરીને જીવડો मीन्स हमने कॉल करके आया जो आप समझा रहे थे ना सारा, कि वो सारा वो गिनान में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि हम कॉल करके आए लेकिन फिर भूल गए, और 9 मास हमको पेट में थे लेकिन नबी मोहम्मद ने बंद छोड़ाविया. सुभानअल्लाह. तो आप पता और है एक वो जी 3 मिनट में गिनान बनाया ना, जो आपने बताया कि कॉल कराया, वो यही वाली कुरान की जी वर्स इसी में है. हाँ जी 7 पूरा by 172. So exactly इस गिनान के आगे हमको ये वर्ड सीखना चाहिए कि ये कुरान की जी वर्ड समझा रहे हैं हमको पीर. जी. सुभानअल्लाह. थैंक यू. और दूसरा गिनान भी है, दूर देश थी आयु वन जारो. सो ऑल वट एवर यू एक्सप्लेन इज क्लियर इन दिस टू गिनान. सो सुभान अल्लाह, शुक्र मौला. मौला है. और अच्छी बात क्या है कि हम गिनान को रिलेट कर सकते हैं, फरमान जी को समझ सकते हैं, एक ही तालीम है अगर हम जी. समझ. सो थैंक यू मुनीरा. और सूरह बकरा की 286 आयत जो आमन रसूल, के हम किसी के ऊपर भी उसके सहन से ज्यादा बोझ नहीं डालते हैं. सो दैट वाज आल्सो अमेजिंग. बिल्कुल. सुभानअल्लाह. वेरी गुड. लुक एट दैट. Thank you so much. शुक्रिया. शुक्रिया. It's We love you, amazing how Yana. friends can now relate the Yeah. the Quran, the Ginan, and the lecture which Allama Sahib has beautifully left for us. So it's like
we're combining every single thing and inshallah opening a lot of locks in our being. Alhamdulillah, there is another reflection of Farida Saba. Thank you so much for sharing these reflections. I would encourage friends to go ahead and read them. Thank you, Niamat Saba, for a wonderful session. And thank you, friends, for joining. And inshallah, we'll continue to see you on nightly zikr. And then we'll continue to do our Giryazari. The importance of Giryazari, Niamat Saba, today explained in the beginning of the session also. So, Alhamdulillah, thank you once again. Thank you, Niamat Saba, for sharing time and knowledge with us. Thank you, friends, for joining. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Yeah, Thank you so much, Yali Madad. Yeah. Nevin Saiba, thank you to you also. Ya Ali Ya Ali Madad. Thank Madad, you to all of you Nevin who are here. Ya Ali Yali Madad. Madad, thank you Yali so Madad. much. Yali Thank Madad. you. Ya Ali Niamat Saiba Thank you. and Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Yali Madad. Ya Ali Madad. Ma Ya Ali Madad.